Navansha. Navansha will be wearing. So as recording is started, I will just repeating this because this is really important. So we are seeing here Mars progression. Mars, what we are saying, every planet will progress one Navansha 1 year. For example, we have taken Mars. Mars is 21 degree Aquarius. So at the start, Mars is in Aquarius sign and and Aries Navansha. Now we are saying in first year, which is 1985 to 1986, which is first year, Mars will remain is the original position. Second year, Mars will come to Taurus. Third year, Mars will come to Gemini. Now we started with seventh Navansha, correct? Mars is in seventh Navansha. So seventh, eighth, and ninth Navansha. So Aquarius sign के अंदर I think something is changed. राकेश जी, ये आई थिंक वो दूसरा चार्ट लगा दीजिए. ये ट्रांजिट वाला चार्ट लग रहा है अभी. स्टॉप करूँ क्या शेयर को? Just show the progress. Just show the birth chart. Yeah. ओके ओके, Click on the birth one. समथिंग वेंट रॉन्ग आई बिलीव. No, ना आप शेयर ठीक ही कर रहे थे. वो जस्ट आपको स्क्रीन चेंज करना उसमें. इज इट ओके नाउ? Just a second. Let's see. नो नो नो, दिस इज नो. अभी तक आया नहीं स्क्रीन. नहीं नहीं, गलत चाहता है. 8 जनवरी वाला. आ गया ना? यस, आ गया. ओके, सो मैं इसमें बताता हूँ. Yes, so what we discussing here, progression. What we telling is every planet progress one Navansha 1 year. For example, we are taking Mars here. Mars is 21 degree. So first Mars is in Aquarius Rashi and Aries Navansha, which is seventh Navansha. 21 degrees, seventh Navansha. So that you keep that in mind, okay? So first year Mars is in Aries Navansha. Now next year, which is first year is 85 to 86. Next year is 86 to 87, which is second year. Mars will come here in the Taurus Navansha. In third year, Gemini. Till this, okay. Now you keep counting the Navansha also. So Mars was in Aquarius sign in seventh Navansha of Aquarius, correct? So seventh, eighth, ninth Navansha over. Now fourth year, Mars will come here. That's clear. But what I'm saying is now Mars will jump to the next Rashi because it was in seventh Navansha, 7, 8, 9. Okay. So 1 to third year, Mars is here. In the next year, Mars will jump here. And from year 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Okay. From 4 to 12 years, Mars will be in Pisces Rashi, but Navansha will be changing. This much is clear, at least very clear how we are seeing this. This we need to see. Mentally, how we see the progression. कि ये हो रहा है. Now what will happen next year? 13th year, in the 13th year, Mars will again come to the same Navansha. So that's why we are saying every year, every 12 year, it will repeat its position in Navansha. But you should keep in mind, it is going to change the Rashi also. So in 13th year, Mars will come here. And then 13 to 9 more year, it will be here. Okay.
So maybe 21, till 21 year it will be here. This much is clear. Now this is how to see the progression, how it is happening. So we just keep, so simply think what we're doing is we are adding 3 degree 20 minutes every year, and you can do mentally this one. So now what I will do is, so this Now, much is understand now. वैभव जी, Yeah, now ask somebody that मार्च का प्रोग्रेशन अभी कहाँ हो रहा है? yes. So let's clear this one. Now let's calculate, everyone, let's calculate It's at very least interesting. This yes, is very interesting. I have calculated. yes, yes. So now someone please everyone calculate in their mind. I want answer from everyone. Just calculate keeping this information in mind And post in the chat. and post in the chat. Right now, what is the date? Let's say No. incident happened. Incident Eight. happened 8th of January. Hmm. Incident happened 8th of January 2025. Okay. Hmm. So calculate where is Mars, and whenever I ask, then only you tell. Okay. Just please calculate mentally. If you are not able to, we'll anyway do calculation. You'll learn. But whoever can calculate, and now tell. It is a magic. And you will believe, though. It's good that we taken one example, independent example, so you will understand the importance of the progression. सर 5 में हुआ। So बोलिए नीना जी, बोलिए कौन से राशि, मैंने- कौन से मैंने नवांशा? सर राशि 5 में हुआ ना सर। सर फोर्थ साइन में होगा सर, 36 पूरे करके फिर उसको 40th, उनका 40th ईयर है जैसे। आप पोस्ट करिए, पोस्ट राशि करिए। सर 4 होएगी और नवांशा 5 में आ जाएगा। ओके, तो कौन सा ईयर चल रहा है सबसे पहले ये बोलिए। 40th ईयर हो जाएगा ना सर, 40th ईयर 40th ईयर 85 चल रहा है, जी Yep. सर। तो ये ठीक है। राशि हमारी 4 में आ गया, कैंसर में आ गया और सिंह में आ गया ये हमारा। तीन, जैसे आपने 3 किया, 3 के बाद 3 से 9 में 12 में आ गया, 12 से फिर आगे चला है, ऐसे करते हुए राशि 4 में आ गया और नवांशा में अगर हम लेते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 5 में आ रहा है। वैभव जी ये D9 के लगन में आगे 36 इयर्स, देन उसके बाद काउंट करके 1 ईयर करके इनका 5th हाउस में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें D9 में देख रहे हैं ना, तो D9 में तो देखो 12 ईयर में यहाँ आ जाता है, यहाँ से चलते हुए 36 plus complete 36 हो तक, 36 यहाँ आ गया। Let other also Yes. try. Let other also try. यस, और कौन ट्राई कर रहे हैं? वंदना जी आप बोले थे अभी। जरा फोन आ गया था। अच्छा नहीं, मैंने D1 में कैलकुलेट किया कि अभी 3rd नंबर राशि में आएगा, मिथुन में आ गए D1 में तो और उसके बाद अभी फर्स्ट ही नवांश चलेगा ना ये तो उनका। अभी देखती हूँ, वो नहीं देखा मैंने, एक बार D1 वाला तो ये D9 वाला करके बताती हूँ, एक मिनट देख ध्यान से। ओके, अभी टाइम कम है तो मैं एक बार सिस्टमेटिकली एक बार कर देते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो सी हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। दोनों में 4 नंबर में आएगा। ऑलवेज कहाँ आएगा राकेश जी? मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। दोनों में 4 नंबर में आएगा। दोनों में 4 नंबर में आएगा। वेरी दोनों वेरी में इंपॉर्टेंट, 4 नंबर वेरी में। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कैलकुलेट एंड सी व्हाट हैपनिंग। ओके, नाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए। एवरीवन नाउ फोकस हियर। What we saying? Mars is in 7th Navamsa of Aquarius. What we saying? Right now, only first concentrate on D1. What we saying? Mars is in 7th Navamsa. Okay. So, what we told last, first to 3rd year. First to 3rd year, because 7th Navamsa, 8th Navamsa, or 9th Navamsa. These are the 3 years. Mars will remain in
Aquarius Rashi. That is very clear to everyone. Now, what we say, 9 years, Mars will stay in Pisces. Next 9 years in Aries Rashi. Next 9 years in Taurus. And let's first calculate till now how many have happened. So 9 3 ja 27 plus 3, 30 years completed here now. Okay. Now one more 9 years here, 39 year and 40th here onwards. Okay. So that is only one. Mars will reach to Cancer Rashi, Cancer Namansa. Now what I'm saying, see here, 3 year in Aquarius, then 9 years in these Rashis, and finally if I calculate till this point, 339 only. So 40th Namansa of the Cancer sign. Correct? Cancer side first Namansa is Cancer itself. Very, very important. Mars is right now in transit also around that year. It was in Cancer. Maybe it crossed Cancer actually. So उनका resignation. ये मतलब कुछ दिन कम थे ना सर? ये 8th डेट ऑफ बर्थ जैसे 14 है, ये 8th को अभी गया आप तो 6 दिन नहीं का अब डिफरेंस है। हाँ उससे अभी फर्क नहीं पड़ता, अभी उससे पड़ता है फर्क पर नहीं अभी पड़ता। हम उसमें नहीं जा रहे, अभी उस जी पे सर। नहीं जा रहे, अभी ओनली ईयरली प्रोग्रेशन। वो उसी पर्टिकुलर डेट को हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं, राइट नाउ इस ईयर के हुआ, अभी उसी पे बात चल रही है। दिस इज वेरी क्लियर, दिस इज क्लियर। सभी को समझ में आ गया हमने कैसे कैलकुलेट किया प्रोग्रेशन? हाँ जी जी जी, समझ में आ तो गया। सॉरी नौ वैभव अब जी, एक बार सॉरी D1 का एक बार दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर दीजिए। ठीक है, तो D1 में क्या किया हमने, अब आप फिर से, मैं इसी बात को फिर से समझा रहा हूँ। है क्या कि इसमें मार्स कौन से नवांशा में, अर्चना जी बोलिए? 21 सेवंथ डिग्री नवा, जी, 7th नवांशा में, करेक्ट। तो Yes. फर्स्ट 7th नवांशा में रहेगा फर्स्ट ईयर में, 8th जी नवांशा में रहेगा सेकंड ईयर में, और 9th नवांशा में रहेगा 3 ईयर। दैट मीन्स जो भी नवांशा में है उसको आप 9 में से माइनस करके 1 प्लस कर दीजिए, सिंपल। तो मैं 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आता, +1 कर दिया तो 3 ईयर तो यहाँ उसको निकलने के लिए यहाँ प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है, एक्वेरियस में। राइट। फिर नेक्स्ट 9 ईयर पाइसेस साइन में, एक राशि में 9 नवांशा होते हैं तो 9 ईयर क्रॉस करने के लिए लगते हैं। जी जी फिर राइट। ऐसे 9 ईयर यहाँ, 9 ईयर यहाँ, 9 ईयर यहाँ, टिल जेमिनी के एंड तक मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कितने ईयर हो चुके हैं। तो मैंने कहा 3 यहाँ पे हो गए, 36 यहाँ पे, तो 39 ईयर जेमिनी के एंड तक हो चुके हैं। 40th ईयर में क्या होगा, देन इट विल कम टू कैंसर का फर्स्ट नवांशा, करेक्ट। राइट राइट। So like this we calculated, and this is the simple method actually. Whenever you calculate, you can rotate this in here as well, correct? But the simplest method is you should basically focus here कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ से भी आ जाता है एक्चुअली, नवांशा तो आ जाता है यहाँ से भी, 37 38 39 40, बट हम क्या करते हैं उसमें फिर गलती कर जाते हैं कि इधर क्या हो रहा होगा। क्लियर? So both are important. So simple thing is this way. You just always keep okay 9 year बीच में तो ऐड करना है. So your focus should be now first place where it started. कितने नवांशा क्रॉस करने थे और कितने उसको अचीव करने हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हमने कैसे कैलकुलेट किया कि 40th ईयर में मार्स का होगा। इट्स वेरी क्लियर, यस यस थैंक वेरी यू, क्लियर। वेरी क्लियर। नो एग्जाम्पल के लिए एक और नहीं चीज, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, अभी ये जो मार्च यहाँ पे 40th ईयर में आया, तो ये क्या इम्पैक्ट दे रहा है? तो अगर हम देखते हैं D1 में, ये मार्स फिर अपने को खुद को देख रहा है, 10th हाउस में बैठा हुआ है। D1 वाला मार्स जो है वो देख, D1 वाला मार्स जो है उसको हम D9 पे अगर चलाते हैं तो सैटर्न के ऊपर में उसके डिग्री पे बैठा हुआ है, करेक्ट? मार्स इसके लिए 8th एंड 12th हाउस है। नहीं 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 नहीं, वो हम 8th एंड 12th हाउस हम नहीं देख रहे हैं अभी। नहीं We are नहीं, not बट looking. अच्छा, ओके।
मार्स कहाँ पे आया है? वो 10th लॉर्ड के ऊपर में आया है। D9 में बिल्कुल भी 10th अगर लॉर्ड के देखे ऊपर चाहे है। D1 जी में सर, भी देखे, टेंथ बिल्कुल। लॉर्ड के ऊपर कहाँ पे है? एट उसी की एट डिग्री पे है। एस्पेक्ट के साथ उसी की डिग्री पे आया है। उसी की डिग्री पर आया सर। यस करेक्ट। यस। और और अगर हम इसको देखेंगे, और D1 वाले को भी अगर वो भी 4 नंबर में आया है, तो वो भी सैटर्न के से ट्राइन में है डिग्रिकली। टेंथ हाउस को भी, टेंथ हाउस को भी देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मार्स से अगर हम 4th हाउस नवमांश में देखते हैं, वो भी कैंसर राशि ही आ रहा है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, दोनों में मार्स वर्गोत्तम है। हाँ हाँ। ठीक है जी। सो मार्स डिग्रिकली सैटर्न से ट्राइन में आया है, सैटर्न और केतु से ट्राइन में आया है। व्हाट इज, आर्या जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वैभव जी, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो प्रोग्रेशन में देर आर सम सेंसिटिव पॉइंट्स, लाइक 36th नवमांश, 55th नवमांश, यस 64th नवमांश। तो यस। आदमी का जो ये ईयर चलेगा, 64th ईयर, तो सारे प्लैनेट प्रोग्रेस होके फिर वो सारे ग्रह मतलब सेंसिटिविटी दिखा रहा है। मतलब 64th ईयर तो सारे ग्रह भी प्रोग्रेस करके वो 64th नवमांश में आया ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने से 64 नवांश में आया है। हाँ, जैसे 54th अपने आया। से आया, बट वो अपने से आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कौन से प्लेनेट, अदर प्लेनेट से फिर उसको उस ईयर में क्या कर रहा है, अच्छा। आप वो चेक कीजिए। तो ओके। अभी पहले इससे डेविएट नहीं होते। हाँ इंपॉर्टेंट थिंग राकेश जी ने क्या बताया यहाँ पर अभी, कि जो यहाँ पर भी डिग्री का भी इंपॉर्टेंस है। व्हाट वी आर सेइंग कि ये इवेंट जो है अभी क्यों हुआ। आप अब हमने क्या किया कि मार्स अपने कैंसर साइन में फर्स्ट नवांशा में आया। फर्स्ट नवांशा मतलब 0 से 3 डिग्री के बीच में कहीं होगा। यहाँ पर भी हम डिग्री देख रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, और यहाँ पे आप सैटर्न और केतु की डिग्री पकड़ लीजिए, 2 डिग्री 2 डिग्री, करेक्ट। तो जो मार्स है वो ये प्रोग्रेस करते हुए इससे ट्राइन में आ गया और डिग्रिकली ट्राइन में आ गया। और हमने सबसे पहले एनालिसिस क्या किया था, सैटर्न केतु इस चार्ट में प्रोमिनेंट है, जब भी इसको कोई ट्रिगर करेगा यू विल गेट द इवेंट। एंड अब भगवान का आप देखिए इतना ग्रेस कि हमने यही चार्ट क्यों लिया। हमने पहले से, नीना जी ने हमको नहीं दिया था कि ये वाला चार्ट डिस्कस करने का है, आप नीना जी से पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम प्रोग्रेशन लगाएंगे ये भी फिक्स नहीं था। प्रोग्रेशन में भी हम मार्स को ही क्यों लेंगे ये भी नहीं फिक्स था, भगवान ने जस्ट गाइड किया, मैंने एग्जाम्पल के लिए मार्स को लिया। तो हमारे ऊपर भगवान का ग्रेस है कि हमको ये एग्जाम्पल देखने मिला कि हम इस एग्जाम्पल को लगा पाए। नहीं तो मैं हो सकता था मैं मून से स्टार्ट करता, वीनस से स्टार्ट करता, बट भगवान का जो गाइडेंस था कि मार्स, मैंने मार्स को पकड़ा। इवेंट का हमारा जो है वो क्लियर हो गया कि व्हाई हाँ, दिस तो हैपेंड। ये हम इतना लर्निंग नहीं कर पाते अगर ये मार्क्स को नहीं पकड़ते। आपको विश्वास नहीं होता, मतलब कभी कभी क्या होता है, प्रोग्रेशन तो हाइपोथेटिकल है, तो लोग कह सकते हैं कि तो हाइपोथेटिकल थिंग है कि चलेगा तो चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा। बट हमारा इतना कॉन्फिडेंस है कि प्रोग्रेशन में होगा ही होगा इवेंट। आपको दोनों में देखने को मिलेगा इवेंट, जब भी प्रोग्रेशन में देखने को मिलेगा तब ट्रांजिट में होगा। वो ट्रांजिट से आप क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं, ये तो ईयर निकल गया। प्रोग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, बट मोटा मोटी आप क्या कर सकते हैं कि पहले प्रोग्रेशन में देख लें कि क्या हो रहा है। उसी पॉइंट पे अगर ट्रांजिट में भी कुछ दिख जाए, अभी इनके ट्रांजिट में भी मार्स सेम कैंसर राशि, कैंसर नवांश से निकला था एग्जैक्टली। तो ये हमको आज टीचिंग, ये लर्निंग मिलनी थी, इसलिए हमने ये सब अपने आप ये होता गया, ठीक है। और तो आप ये इसमें तो वेरी क्लियर दिख रहा है कि होगा ये इवेंट। तो क्या हम वैभव जी थोड़ी डिग्री चेंज होने पे ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे, डिग्री चेंज हो जाएगी तो थोड़ी सी।
मार्स की। अब मार्स देखिए 8 जनवरी तक यहाँ था, सॉरी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात भी है कि 1985 ये अपना 40th ईयर कब तक चल रहा है, 14 जनवरी तक चल रहा है, और अभी हम उसको क्रॉस कर चुके हैं। अब इनका 41th ईयर चालू हो चुका है, करेक्ट। हाँ जी। तो उस डिग्री से आगे निकल गए। हाँ जी। तो अब जो है मार्स, इट विल मूव टू नेक्स्ट नवांशा ये इन 41th ईयर, बट इट विल रिमेन इन। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्स यहाँ रहेगा तो 9 साल तक उसको कोई नो जॉब नहीं लगेगी, ऐसा तो नहीं होगा, हम्म। करेक्ट। तो नवांशा के प्रोग्रेशन में राशि भी इंपॉर्टेंट है, साथ में साथ उसके नवांशा भी, विद रिस्पेक्ट टू दिस उसका नवांशा भी देखना चाहिए, उसको हाँ हमको प्रोग्रेस कराना है। हाँ जी। So Mars जैसे ही लियो में जाएगा, in a D1 it will aspect the 10th house, so we can expect some good thing to happen. That's what you're trying to say, right? ना अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आगे आगे मूव कर जाएगा। आई एम सेइंग दिस दिस प्रेजेंट कंडीशन इज वेरी वेरी वीक। उसके आगे मार्स मूव करेगा। अभी मैंने कुछ एनालाइज नहीं किया, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। बट नेक्स्ट ईयर वो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कितने दिन में लगने वाला है, अब इनका 14 जनवरी ऑलरेडी लग चुका है, हाँ, करेक्ट। ऑलरेडी आज लग चुका 19 ना, है, तो लियो में तो वो जाना चाहिए 41st ना। ईयर में आ गए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करते ही नौकरी लगेगी, तो और भी चीजें देखनी पड़ेगी हमको। बट ये जो वीक पॉइंट था वो इस पॉइंट तक था, ओके। 14 जनवरी तक। तो अब जैसे हमने बट इट विल मार्च का इम्पैक्ट प्रोग्रेशन फॉर लगाया, ईयर ना। हम हाँ अभी अब इमीडिएटली टाइम नहीं कंफर्म कर पाएंगे, बट द मार्स प्रोग्रेशन इन D9 आल्सो विल रिमेन फॉर अ ईयर। सो अगर वो लियो हाँ में है तो उसका 1 साल तक कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, राइट? अभी हम समझा रहे हैं, पहले आप रुकिए। हाँ। हम क्या कह रहे हैं कि जितना अभी समझ में आया कि 1 साल में ये होता है, ये हमने अभी एक प्लेनेट को पकड़ा कभी। अब आगे क्या है कि साथ में देखना पड़ेगा नेक्स्ट, अभी कमिंग प्रोग्रेशन में ये एक प्लेनेट तो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, हमने जैसे मार्स को लगाया, अभी जुपिटर भी प्रोग्रेस कर रहा होगा, वो कहाँ आएगा, वो उसको हेल्प करेगा क्या नहीं करेगा, उससे हम आगे की बात कह सकते हैं। बट ऑलरेडी अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग के लिए एक प्लेनेट को पकड़ा, उससे हम एक चीज तो देख पाए कि हाँ हम इवेंट को देख पा रहे हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे क्या होगा उसकी बात अभी नहीं डिस्कस कर रहे। तो सभी को कैलकुलेशन आ गया कि कैसे हमने कैलकुलेट किया? बिल्कुल सर। दिस इज क्लियर। ओके। तो अभी एक और चीज कर सकते हैं, आई थिंक इनके इसमें जुपिटर 36, जुपिटर कितना डिग्री है? जुपिटर जुपिटर लग्न में आया हुआ है अभी। हाँ वही, तो अब लग्न देखते में हैं। प्रोग्रेस कर रहा है और वर्गोत्तम है, तो D9 में भी अब 2 नंबर में है। तो अब क्या करते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड दिस विल गेट क्लियर। लाइक एक तो हो गया कि कौन से ईयर में कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस, जो फर्स्ट मेथड है कि कब असेंडेंट किसी प्लेनेट को मीट करेगा, और या कभी कोई प्लेनेट असेंडेंट को मीट करेगा। अब एग्जांपल के लिए हम जुपिटर को ले रहे हैं। सी ईयर जुपिटर, जुपिटर का सबसे पहले आप डिग्री नोट कर लीजिए, कितना है? 0 डिग्री, मतलब फर्स्ट नवांशा में। दैट्स क्लियर। और इसको कहाँ पहुंचना है? असेंडेंट में। रूल यह है कि जब भी जुपिटर प्रोग्रेस करता हुआ असेंडेंट को मीट करेगा, वो उस ईयर इंपॉर्टेंट इवेंट होगा ही होगा, विदाउट एनी डाउट। ठीक है। तो अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से जुपिटर से कैसे पहुंचेंगे। अब आपको ये कैलकुलेशन करना आ जाएगा तो आपको सब आ गया बस। तो आपको ये तो फर्क आ गया कि कौन से ईयर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि ये प्लेनेट पर्टिकुलर असेंडेंट या पर्टिकुलर प्लेनेट को कब मीट करेगा, तो हम सर ये तो कैलकुलेट करेंगे। अब 30 आपके हिसाब 37 से में ये आएगा भी ना। 2 में आ गए, 2 में ही कर रहे हैं। हाँ 9 ईयर्स करके चलते हैं तो 2 में ही आ गई है, हाँ, तो अब मैं वो कर रहा क्योंकि हूँ कैलकुलेशन। जीरो से शुरू हुआ तो पहले 9 साल 10 में ही रहा, फिर 9 ऐसे यस करते हुए 9 का यस, मल्टीपल, तो ये सो 2 लेट्स, में ही प्रोग्रेस कर रहे हैं। यस लेट्स डू गुरु। दिस वन सिस्टमेटिकली अगेन। अब हमको कौन से ईयर में असेंडेंट को हिट करेगा ये निकालना है। अभी कहाँ चल रहा है उसको छोड़िए, अगर मैंने पूछा बस कि आपके 2 प्लेनेट है तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जुपिटर कहाँ है फर्स्ट नवांशा में। यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब इसको कैप्रिकॉर्न क्रॉस करने के लिए कितना लगेगा? 9 9 माइनस years। 1 प्लस 1, 9 ही आ जाएगा, तो 9 ईयर्स लगेगा। वो यहाँ लिख दीजिए।
और जो एंड वाला है, जहाँ असेंडेंट इसको पहुंचना है, उसको पहुंचना है, असेंडेंट तक पहुंचना है। जो असेंडेंट है 9 डिग्री 21 मिनट, मतलब 3 नवांशा, करेक्ट। उसको 3 नवांशा पहुंचना है, ठीक है। तो अब बीच के 9 9 ईयर जोड़ लेते हैं, 9 9 9। तो अगर जुपिटर को असेंडेंट के ऊपर आना है तो 36 से 39th ईयर, 39th ईयर में टॉरस के ऊपर चल रहा था, 40th ईयर में नहीं। एम आई राइट राकेश जी? कुछ गलती तो नहीं कर नो रहा हूँ? नो नो, यू आर राइट। उस ईयर में कोई ओके। अच्छा इवेंट हुआ होगा। अब देखिए उसका जो सेविंग 39th ईयर में अच्छा इवेंट हुआ होगा, 40th ईयर में वो आगे निकल गया, ठीक है। ये 37 नहीं होगा क्या? आई थॉट 37 आएगा। 36 + 3 39। 3 आप अच्छा 3 फॉर नवांशा वैसे ले रहे हो। मैंने कंप्यूट किया था 37 में, वो टॉरस में होगा। नहीं, आपने क्या कैलकुलेशन किया? 9 फोजा कर लिया था हाँ ठीक है, 36, सो टॉरस में देन हाँ, तो वो मूव होगा, लेकिन करेगा अगली साइन में, दैट इज 37th ईयर को आएगा, या उसको कंसिडर करेंगे एज अ 39 +3 करके? अच्छा, 3 ना, मैग्नेटिक यहाँ पे डिग्री। 3 नवांश है। हाँ गॉट इट, मेरा यस। कैलकुलेशन में। हाँ, सबको ये समझ में आ रहा है ना? मैं ये इसलिए स्लोली चल रहे हैं, ये समझ में आ गया तो आपको कैलकुलेशन कभी भी इसमें डर नहीं लगेगा। कैसे किया हमने, कि कहाँ से चालू होना है, कहाँ पहुंचना है उसको। यहाँ से चालू हुआ तो इसको ये राशि क्रॉस करने में कितने साल लगेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट नवांश में तो 9 साल लगेंगे। और इसको असेंडेंट में पहुंचने के लिए कितने साल लगेंगे, ये तीसरे नवांश में तो 3 साल लगेंगे। बीच में तो 9 9 9 जोड़ना ही है, तो आपने 9 9 9 3 बार जोड़ ले, तो 9 × 4 36। +1 +3, तो ये आया 39th ईयर उनके लिए इंपॉर्टेंट ईयर होगा। अब आप उनसे पूछ सकते हैं कि 39th ईयर में क्या हुआ। कोई बेबी अभी बॉर्न हुआ है क्या ऐसा? मतलब अभी पता नहीं क्या नहीं स्टेटस है सर, उनका। नहीं सर, ठीक है, नहीं। तो 39th ईयर कुछ इंपॉर्टेंट रहा होगा उनके लिए। नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, बट फादर मैं पूछ लूंगी। रिलेटेड भी इवेंट हो बट मेरी सकता है ना, नॉलेज में नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट हैपेंड। ठीक है, पूछ लेना एक बार। हम्म। ओके सर। तो अब देखते हैं कि ये 39th ईयर सर मतलब, सर एक्चुअली 39, मतलब शी वाज नॉट 40, तो 39 में ये नौकरी गई है 39 में। सिग्निफिकेंट में इट हैज टू बी समथिंग गुड ओनली। नहीं 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 नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी तो 40th ईयर में गई है। नहीं सर, 39 प्लस नहीं अभी नहीं, 40 तो 14 जनवरी को शुरू हुआ ना। नहीं, फोर्टी नहीं वन नहीं ये चालू तो नहीं हुआ 8 जनवरी को हुआ। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं। ओके। वो- ओके सर। अभी हाँ, ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। जब नौकरी गई तब कौन सा ईयर चल रहा था, ठीक है। तो जनवरी 85 का बर्थ है ना? हाँ जी सर। 8 ट्वेंटी ट्वेंटी हाँ। फाइव ओके, टिल हाँ जी 14 सर। टिल 14 जनवरी 2025 उनका 40th ईयर चल रहा था। जी सर। जो 39th ईयर था वो ओके। 24 तक हाँ था। ठीक है, एग्जैक्टली राइट, यू आर राइट सर। तो उसका आप ऐसा पूछिए, मतलब ये तो एक साल बहुत लगता है क्योंकि इसके एंड में आ गए, तो हम क्या पूछ रहे हैं कि जनवरी 23 से जनवरी 24 में कैसा रहा, ये पूछ रहे हैं। ओके सर, पूछ लूंगी, बट मेरे को सो मोस्टली मोटा जनवरी। मोटा 23, क्योंकि जनवरी में तो 14 डेज ही आते हैं, मोटी मोटी की 23, 2023 कैसा रहा उनके लिए, कोई भी इवेंट 2023 में कैसा रहा। ओके सर। यही हमने आप सभी को होमवर्क दिया था लास्ट साल, सर कि आप इट हैज जुपिटर को, टू बी समथिंग गुड ओनली, यस। हाँ, हैज टू बी क्योंकि समथिंग जुपिटर गुड का ओनली। इट शुड बी समथिंग गुड ओनली। यस। राइट सर। सैटर्न का ट्रांजिट लग्न में होता है तो नेगेटिव होता है ना, मतलब प्रोग्रेशन में सैटर्न आपका लग्न में ट्रांजिट करता है यस, तो फिर नेगेटिव इवेंट आता है। यस, मोस्टली। ये रूल यही ठीक है है। कि बेनिफिट अगर ट्रांजिट में लग्न में जाए, मतलब प्रोग्रेशन में लग्न में जाएगा तो अच्छा इवेंट आएगा, मेलिफिक जाएगा तो नेगेटिव इवेंट आएगा। हम्म। अच्छा, तो ये यहाँ पे हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये हमने बहुत बार, राकेश जी और मैंने इसको बहुत बार यूज किया है, तो इसको एक बार ये भी देख लेते हैं। तो जुपिटर कहाँ आएगा प्रोग्रेशन में? असेंडेंट जहाँ लिखा है, तो यहाँ पर आपका जुपिटर 39th ईयर में यहाँ आया और इधर पाइसिस में आ गया, तो जुपिटर स्ट्रांग भी हो गया यहाँ पर।
तो और उसके चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छे रिजल्ट मिलने के। बिल्कुल मिला करेक्ट। होगा, क्योंकि क्योंकि जुपिटर जो है वीनस को यहाँ पे ये दे दिया है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पोजिटरशिप। डिस्पोजिटरशिप दे दिया है। बिल्कुल मिलेगा। और अपने उच्च और ये राशि से नवांशा में यस अपनी उच्च राशि के ट्राइन में भी आ गया है वो। यस, एंड ये जुपिटर जो है वो आपके सैटर्न केतु को देख भी रहा है, तो हो सकता है इनकी जॉब चेंज भी हो, या इसमें मतलब प्रमोशन के साथ जॉब चेंज भी पॉजिटिव इन्होंने चेंज की होगी जॉब। आई या थिंक इनके जॉब तो इंक्रीमेंट। आप बता ही रहे चेंज होता ही रहता है, इन्होंने अच्छा जंप और लिया होगा हमेशा इसमें। सर, हमेशा नेक्स्ट जो है अक्सर अच्छा ही मिला है इनको। हाँ, तो ये इनको ये जो चेंज किया होगा और अच्छा जंप मिला होगा इसमें, ये एक बार चेक कर सकते हैं। ये सैटर्न केतु आ ओके। गया ना, सैटर्न केतु जॉब जॉब छोड़ता है, पर अगर जुपिटर साथ में आ जाए तो अच्छे के लिए छोड़ते हैं। ये सर, ये जो जुपिटर लगा रहे हैं, ये किस ईयर के लिए अब आप कह रहे हैं? 39th ईयर के लिए ही बोल रहे हैं। थर्टी 39, नाइन्थ ईयर के लिए। पर्टिकुलरली ओके। 2023 से 2024 हाँ, मे बी ओनली मैं 20। हाँ, मैं उन्हें ये बोलिए पूरा ईयर 23 कैसा रहा, क्योंकि ओके सर। जनवरी को बोलिए। ओके। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, आई कंफर्म इट। सर सर फादर अगर रिलेटेड इनका कोई इवेंट वो हो है आपके सकता है पास, तो क्या? मैरिज का भी देख सकते हैं जो पास्ट इवेंट के लिए। बिल्कुल देख हम्म, सकता हूँ। देख सकते हैं, यस। सर माय क्वेश्चन इज, अगर ये जुपिटर का ही देख रहा है 39 ईयर का, फादर रिलेटेड भी कोई इवेंट हो सकता है क्या, इवन इफ इट इज पॉजिटिव, सिंस इट इज प्लेस्ड इन अ 9th हाउस? उसकी लॉर्डशिप होती तो कह सकते थे। बट डिस्पोजिटर तो है ही ना, क्योंकि सैटर्न ही है ना उसका डिस्पोजिटर। सैटर्न डिस्पोजिटर है। हाँ, कह सकते हैं सैटर्न 10th लॉर्ड, सॉरी, जो 9th लॉर्ड है सैटर्न, उसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, सो गुड नहीं, है। जो भी नेटिव है, इनके फादर जो है वो काफी धार्मिक आदमी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन। दैट इज राइट। है ना, काफी धार्मिक आदमी होंगे और समाज में भी इनका अच्छा एक अपना नाम होगा। सर, ही वाज एट ए वेरी गुड पोस्ट। अथॉरिटेटिव होंगे यस, थोड़ा। गवर्नमेंट जॉब में थे क्या? नहीं सर, गवर्नमेंट तो नहीं था, लेकिन हाँ हाँ हाँ। अम, अच्छे डायरेक्टर फाइनेंस थे। इनकी कोई एल्डर सिबलिंग है या नहीं है? है सर, अच्छा एक बहन है अच्छा। और छोटा भी है, छोटा एक भाई है। हम्म। छोटा तो है, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप सर पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली वो 12 लगन की है, एल्डर सिस्टर, और छोटा भाई 4 लगन का है, एग्जैक्टली जो इनकी देखिए पत्री में दिखता है। देखिए, हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल वही है, क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल एकदम सेम है। ललिता जी, इज इट क्लियर विथ यू? सभी कैलकुलेट कर पा रहे हैं? अभी ये क्लियर हो गया तो उसके बाद ये चैप्टर वहीं क्लोज हो जाएगा। ये मैम ने लास्ट में जो एक पॉइंट बोला, रिपीट हो सकता है क्या? कौन सा वाला? कुछ तो उन्होंने सिबलिंग्स का बोला ना, सम उन्होंने सिबलिंग्स का सिबलिंग्स। उन्होंने बोला, इनका यंगर सिबलिंग है, ये टॉरस है, तो यंगर सिबलिंग इनका जो उसका भी चार्ट है इनके पास, वो कैंसर लग्न का है। और लगन जो का। एल्डर अच्छा। सिबलिंग है वो पाइसिस लग्न का है, वो यहाँ से मैच कर रहा है। ओके। हाँ, ये वैभव मेरे जी, साथ भी है। पर वो एक बच्चों का बार भी सेम हो गया ना, एल्डर, अगर हम लेते हैं एल्डर सिस्टर, तो उसका भी छोटा जो हो गया वही 2 लगन बन गया, बिल्कुल हाँ, वो तो डिट्टो सेम तीनों बन तीनों जाएगा। के सेट हो गए, फिर तीनों तीनों के आपस में, हाँ बिल्कुल तीनों एकदम आपस में मैच सीधे। कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वैभव जी, एक क्वेश्चन है कि हम्म, जैसे आपने ये बताया कि ये जितने डिग्री का है, मतलब जितने नवमास में है, उतना माइनस करके +1 करना है। +1 करना है। ठीक, अब ठीक है। जैसे इसमें जुपिटर मतलब पहले नवमास में है, तो इसको हम 9 - 1 +1 करके चलेंगे। यस, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल आपके लिए कर लेते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सभी को क्लियर हो जी जाएगा। और तो आप जी। इसमें, आप सबसे पहले आप ही करिए वीनस का कैलकुलेट के लिए, वीनस एसेंडेंट को कब मीट करेगा। सर ये 6 नवमास में है जैसे। ठीक है,
वीनस को 9, देखते हैं 6 नवांशा में, यस। तो 9 माइनस 6 प्लस 1 ऐसे लेंगे। यस, कितना ईयर आया? 4 ईयर। 4 ईयर। यस। ठीक है, तो तो वो 4 ईयर्स उसको यहाँ लग जाएंगे। उस हाउस में रहेगा, देन उसके बाद वो नेक्स्ट हाउस में प्रोग्रेस कर जाएगा फॉर 9 ठीक है, ईयर्स। फॉर 9 ईयर्स, एंड फॉर 9 ईयर्स हियर, एंड उसको पूछना कहाँ है? असेंडेंट में। जी। तो असेंडेंट में कितने साल लगेंगे? और 3 नवांशा है उसमें, जी तो कितने सर, लगेंगे? 3 कैसे लिया आपने सर? थर्ड नवांशा है ना ये, लगना नाइन जी जी नाइन जी डिग्री जी, ठीक है सर, एक और चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो जी जी। इसलिए ये 3 ईयर यहाँ लगेंगे। तो तो सर इनकी मैरिज का 25 ईयर्स के लगभग हो रहा होगा हैपनिंग। मैरिज क्यों आपने पकड़ा? ऐसा कोई रूल नहीं कि वीनस लग्न में आएगा तो मैरिज होगा, सर वीनस वो से एज रिलेटेड एज प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना सर वो। हो सकता है। नीना मैम, आपको पता है इनकी मैरिज कब हुई है? कहीं 28th सर ईयर में हुई ट्वेंटी है क्या? सेवन्थ ईयर में। 28th ट्वेंटी ईयर में सेवन्थ हुई ईयर। है? हाँ जी। 28th ईयर में हुई होगी, आप देखिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। हाँ, तो क्या हुआ था उस टाइम 28th ईयर में, अगर हम अभी किसी को, एनीबडी। सर शादी भी हुई थी और उसी साल इनका एक्सीडेंट भी बहुत भयानक नहीं हुआ नहीं, था। वो नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई अभी बताया, मैंने 28th ईयर मैंने क्यों बोला अभी इनके मैरिज के लिए? चलिए, आई आई टेल। 28th ईयर में जुपिटर जो है प्रोग्रेशन में मार्स के ऊपर में चल रहा था, नवांशा में। सो नवांशा में जुपिटर को देख लेते हैं यहाँ पर। और 24 तो यहाँ आ गया, और डी 25, 26, 27, 28 यहाँ आ गया। और D1 में भी एक नंबर में चल रहा था। मार्स जो है 7th लॉर्ड है, उसकी नवांशा राशि के ऊपर में जुपिटर का प्रोग्रेशन हुआ था। हुआ था। और अगर हम ट्रांजिट देखें तो शायद वो भी कुछ अपने को मिल जाए, हम्म। है ना? मार्स आपने किस पे बताया? 7th लॉर्ड की डी नवांशा राशि हो गई ना, मार्स जो है नहीं नहीं, 7th में। जुपिटर D1 में आपने कहाँ पकड़ा उसको? एक नंबर में, एक नंबर एरीज में। में, एक नंबर में एरीज पकड़ा, में। ठीक। D9 में भी एरीज में। अच्छा, ऐसे ही आप ये क्लियर है सबको कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? तो आपको क्या करना है कि पहला रूल जो है, वो पहला है, दूसरा मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, पर दोनों सेम ही है। असेंडेंट कब किसी प्लेनेट को जाके मिलेगा, और सेकंड रूल है कोई भी प्लेनेट असेंडेंट को कब मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हर प्लेनेट को कैलकुलेट करना है और देखना है कि वो असेंडेंट को कब मीट कर रहा है। जैसे अभी हमने एग्जांपल के लिए वीनस को पकड़ लिया, हमने जुपिटर को पकड़ लिया, ऐसे आप सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास 9 प्लेनेट है तो 9 ईयर आ जाएंगे, वो 9 इंपॉर्टेंट ईयर आ गए आपके पास। ऐसे ही जब असेंडेंट प्लेनेट को मीट करेगा तो आपको 9 और ईयर आ जाएंगे, करेक्ट। ये सब ईयर इंपॉर्टेंट ईयर होंगे उनकी, उनमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बैड और गुड इवेंट होगा ही होगा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द प्लेनेट। ये क्लियर है? सर इस सेंटेंस को रिपीट करिए। 9 साल के बाद प्लेनेट कौन सा? प्लेनेट जो है लगन को मिलेगा। नहीं नहीं, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट ईयर्स ईयर्स निकाल रहे हैं, तो हर हाँ एक जी। प्लेनेट कभी ना कभी असेंडेंट को मिलेगा। तो हमारे पास 9 प्लेनेट है, असेंडेंट। तो नौ ओके। प्लेनेट ओके। असेंडेंट को मिलेंगे, तो आपके पास जब मिले 9 ईयर जब कैलकुलेट आ मिलेंगे। जाएंगे। ओके। ओके जी। ठीक है, ओके सर। तो 9 ईयर सर आपके आ अब जाएंगे। सर इस प्लेनेट के लिए जैसे मान लीजिए सैटर्न अच्छा है, तो अगर सैटर्न इसको मिलेगा तो अच्छा करेगा बुरा करेगा? नहीं नहीं, आपको सैटर्न इस प्लेनेट के सैटर्न, लिए ठीक है, योग कारक है। तो अगर सैटर्न मतलब इस पे डिपेंड करता है कि नहीं, कि सैटर्न अगर मिला लगन को तो ये बुरा ही होगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, सैटर्न अगर लग्न को जहाँ तक, मिलेगा क्योंकि तो नहीं कुछ ना कुछ तो सर, इवेंट आपको देगा उस टाइप की। नहीं कुछ ना कुछ इट कैन बी इन दैट केस पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि सैटर्न इसके लिए योग कारक है। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हम वो वैसा नहीं नहीं सर। देखेंगे। नहीं यहाँ पे वैसा नहीं लेना है। यहाँ पर ओके।
इट विल बी अ हाँ, ये नेगेटिव। जरूर है कि देखो, एक तो नेगेटिव हो सकता है पर साथ में कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि योग कारक है। तो ऐसा नहीं है एक साल में एक ही पॉजिटिव, मतलब एक ही इवेंट होता जी है। सर, जी दोनों सर, तरह के इवेंट हो सकते एग्री, हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 10th लॉर्ड एग्री, 9th लॉर्ड भी है ना, तो वो हाँ जी सर। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्लेनेट जब लग्न में चले जाता है तो वो प्रोमिनेंट हो जाता है, उस बहुत सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है उसके पास। तो और एक ओके सर। तो और एक चीज है, दोनों हो जैसे सकते। इनका जो सैटर्न और केतु जो है ना, इनको केतु बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, कोई प्रॉब्लम बताएगा? नहीं देगा क्यों क्या नहीं सर? दे रहा है, बताएगा कोई? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सैटर्न यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर केतु को प्रॉब्लम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, आप सब में केतु से कोई केतु बताएंगे? सैटर्न को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दे रहा है यहाँ पे, ऑल्दो दे आर टुगेदर। It is in its own sign. को लॉर्ड है, हाँ। नहीं, आप और ज्यादा सोचिए लॉर्डशिप कि क्यों वगैरह नहीं दे रहे मत हैं। करिए। सर गुरु के बहुत नक्षत्र में है, सर जुपिटर के नक्षत्र में है। नहीं नहीं, उतना उतना डीप में मत जाइए, सिंपल बताइए। केतु आपके डिग्री सामने वाइज आंसर। थोड़ा अलग हो रहा है हाँ। सैटर्न से। यस, यस। यस। देखिए, केतु सैटर्न केतु से सैटर्न सेपरेटिंग मोड सेपरेटिव में है। है। केतु कहाँ जा रहा है? रेट्रोग्रेड होके पीछे जा रहा है। सैटर्न कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। या सो अगर मान सैटर्न ऑलरेडी लीजिए उस डिग्री को क्रॉस कर चुका है। अगर मान लीजिए यही सैटर्न, अगर केतु की डिग्री जो है, सैटर्न की डिग्री 2 डिग्री 2 मिनट्स होती है और केतु की 2 डिग्री 16 मिनट्स होती, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है इसको। सर नवाशा तो सेम ही है, पर हाँ सेपरेटिव मूड है। सेपरेटिव मोड है, ये सर सेपरेटिव ने मोड है। बहुत इंपॉर्टेंट बताया है, और ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है सेपरेटिव ट्रांजिट मोड। में भी, कि वो हाँ अप्लाइंग वेरी एस्पेक्ट में है कि सेपरेटिव मोड में। ट्रू सर, ट्रू। सर ये 25वें साल में शादी का कैसे बताया, एक बार एक्सप्लेन कर देंगे 28वें पच्चीस सर? नहीं, साल में। 28 28। 28 में, हाँ जी सर। हमारा रूल क्या है ट्रांजिट का, कि जब भी सेवेंथ लॉर्ड की नवांशा राशि के ऊपर में, एक रूल ये भी है कि जब भी सेवेंथ लॉर्ड की नवांशा राशि के ऊपर में जुपिटर का ट्रांजिट होता है, तो देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज इफ ओके प्रॉमिस इज देयर, राइट? हम्म। तो सेवेंथ लॉर्ड कौन है यहाँ पे? मार्स। उसकी नवांशा राशि क्या है? मार्स। नवांशा राशि क्या है उसकी? एरीज है। एरीज। एरीज। तो सैटर्न देखिए 28th ईयर में एरीज के ऊपर ही प्रोग्रेस कर रहा था। जुपिटर जुपिटर। जो जुपिटर, आई मीन सॉरी। है ना? एक और खास बात है, जुपिटर भी करेगा, साथ में साथ सन भी वहां आएगा। हाँ। सन भी उच्च का हो जाता है उधर। खैर, हम्म। पर इनका जो लॉजिक है वो वहां से है, जुपिटर से। मैं जस्ट बता रहा हूँ, साथ में सन भी चल रहा है अब इनके तो। हम्म। बट फिर ये एक्सीडेंट का भी उन्होंने शादी के टाइम ही बोला था क्या, इवेंट? जी। बेटे मई में शादी हुई थी और 31 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। कौन सा मई, कौन सा ईयर? एग्जैक्टली ईयर आपको फिर याद है तो? ईयर बेटे 2013 बना। 13 ही बनेगा। 13 ही बना ना, हाँ ठीक है। हाँ। 13, हाँ 13। हाँ, तो 28 तो फिर ईयर तो वो हुआ। और 13 है मई ना? में शादी हुई थी और दिसंबर नहीं थर्टी नहीं, फर्स्ट तो फिर वो दिसंबर को एक्सीडेंट। 27 ईयर हो गया ना। मैं गलत हूँ क्या? मई हो गया ना, 2013। नहीं, मई 2013 है ना। हाँ, तो 15 और 13 28 हो गया ना। हाँ ठीक है ठीक है, 2013 मतलब 14 को लेंगे हम, तो 29th ईयर हो गया। हम्म। 29th ईयर हो गया। मैं गलत एक 2013। बोल रहा हूँ? सेकेंड में, 14 14 15, एक हाँ सेकेंड वही सर, तो। मैं क्लियर करके अभी बता, आई जस्ट हाँ, लेट आप यू नो। पहले देख लीजिए, हाँ कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। हाँ, 29th ईयर ही होगा वैभव जी। बट अगर ये 2013 है तो, हाँ। अगर 9 18 27, नहीं नहीं, 28th ईयर ही होना चाहिए। जनवरी तक 28 रहेगा, वो जनवरी हुई तो 2013 तक। हुई तो 2013 में हुई है। अच्छा, तो जनवरी मई तक। मई 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 13। ओके, तो जनवरी हाँ तक मई। 28 ईयर था। हाँ और जी, हाँ जी।
उसके बाद हाँ में वो वाले उसकी को अपन एंगेजमेंट 29 पहले हो के। गई थी ना, एंगेजमेंट पहले हुई थी, शादी बाद में हुई है सर। नेचुरली वो शायद पहले हो गई ना जनवरी में, अच्छा अच्छा, वो हाँ 28 तो ईयर में शादी उसकी, फिर 29th में ही हुई। और सेम ईयर में ही एक्सीडेंट, मैंने बोला 31 दिसंबर को एक्सीडेंट हुआ था। 29। सैटर्न केतु तो मार्स कितना है, 21। वीनस कितना डिग्री है, 17। ओके। हम्म। सर ने एक ये भी कहा था कि अगर 10th हाउस में वीनस बैठता है तो डेथ लाइक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन सेविंग ग्रेस हमेशा रहता है। तो काफी भयानक एक्सीडेंट था, लेकिन ठीक रहा, ठीक हो गई। साल भर प्रॉब्लम रही, ठीक हो गई। सर क्या कैलकुलेट करें? मैं भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ 29th ईयर में कोई प्लेनेट, ये सैटर्न ओके, केतु जो है या राहु है, वो कहीं कहीं मैच मीच किसी को देख रहे थे क्या, यही कोशिश कर रहे हैं ओके, देखने की। ओके। ठीक है, इसको अपन बना के देखेंगे, ये जरूर दिखेगा जब सर हम सर वो अपना सैटर्न एक्सेल शीट में सैटर्न एक्सेल। अपना सैटर्न अपना एक साइकिल पूरा कर लेता है 29 ईयर्स में। एक साइकिल, मेजर साइकिल पूरा हो गया सैटर्न का, है ना? हाँ वो तो है। मार्स अपनी डिग्री पे था उस टाइम में, और 5 नंबर में था मार्स। 5 नंबर बोलने से वो इधर में लग्न में था। नौ, लग्न में ही होगा नौ, वो तो। 9, 18, 3, 21 और 8। 8 नवांशा में था, लग्न से 8 नवांशा में था, अपनी डिग्री में नहीं था, सॉरी। 9, 18, 27, 9, 18 और 3, 21 और 8। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है राकेश जी, ये अभी हम डिस्कस नहीं करना चाहते, पर ये जो ये ईयर है ना, हम्म। मुझे लग रहा है कि मार्स सैटर्न केतु के ऊपर से निकला होगा। नहीं नहीं, सेकंड केतु के ऊपर से नहीं निकला, नहीं, ये तो बहुत ईयर एंड हो गया ना, हाँ ठीक पांचवें है। नवांशा में था। 5वें में था। हम्म। लग्न में था 8वें नवांशा में, मतलब 5 नंबर में आ गया इधर। हम्म। ठीक है, इसको हम देखेंगे एक बार फिर से, इसका पूरा एक्चुअली उस
अभी कैलकुलेशन से नहीं होता, अभी इसका एक्सेल शीट में हम बना के देखेंगे तो क्लियरली दिख जाएगा कि क्या हो रहा होगा। सर मैं भी दोबारा से पूछ लूंगी, जरा कंफर्म कर लूंगी, तब तक आई हाँ लेट एक यू बार नो, मैं देख के। हाँ जी, करेक्ट। मैं आपको भेज दूंगी। थैंक एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लूं क्या? यस यस। सो अभी जैसा हमने वीनस का देखा कि वो 25th ईयर में असेंडेंट को टच करेगा, एंड अगले 9 ईयर तक वो यहीं रहेगा ना, टॉरस में। अगले तो 9 जब हम ईयर इवन तक नहीं रहेगा ना, आप फिर 27th ईयर में वो 25 थर्ड को, नंबर से हुआ है। हाँ बट यहाँ पे टच किया उसने टॉरस को, अच्छा, राइट? तो हम यही कर रहे हैं ना, लाइक 9 साल तक हाँ पाइसेस टॉरस में में रहता रहा। है। हाँ, तो मैं पूछ रही थी कि अगर फिर वो 9 साल तक टॉरस में है, तो क्या वो 9 साल तक कुछ इम्पैक्ट देगा, या सिर्फ जब वो पहली बार एंटर कर रहा है उस साइन में तभी कुछ इवेंट होगा? नहीं, आप उसको ऐसे सर मत वो देखिए, डिग्री जैसे डिग्री आप से ही ट्रांजिट में मिलेगा, डिग्री देखते हैं वैसे डिग्री डिग्री देखिए। कैसे होगा सर? अच्छा, तो ईयर हम निकाल सकते हैं कि उस ईयर में कुछ इवेंट होगा। मतलब कोई भी राशि और एक नवांशा बन के एक डिग्री बनाते हैं, करेक्ट। फॉर हम्म। एग्जाम्पल टॉरस के थर्ड नवांशा मतलब क्या हुआ, टॉरस का थर्ड नवांशा क्या हुआ, सेजिटेरियस सॉरी, टॉरस साइन पाइसेस नवांशा, करेक्ट। हम्म। तो जब भी मैं कहूँ कि असेंडेंट टॉरस और पाइसेस नवांशा में है, इसका मतलब आई नो कि इट इज 21 डिग्री, सॉरी इट इज 9 डिग्री, हम्म। करेक्ट। तो उस तरीके से आप एक डिग्री सोचिए टाइम माइंड में, और फिर वो देखिए वो प्लेनेट किस किस प्लेनेट से मैच कर रही है और क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं कि वो 9 साल तक वो टॉरस के रिजल्ट ही देगा, मतलब टॉरस के सोच के नहीं देगा आपको। यहाँ पर जो नवांशा में प्रोग्रेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा। वैभव जी, यस। इनकी मैरिज वाली ईयर में जो है ना, हम्म। राहु जो है अपनी ही डिग्री में, राहु D9 वाला राहु 10 नंबर में चल रहा था। यस। दैट इज जुपिटर और राहु सन तीनों एक ही जगह में जहाँ पे है, वहीं पे D9 वाला राहु चल रहा था। और D1 में भी ये 10 नंबर में था। यस। ठीक है। 29th ईयर में राहु राहु 0 डिग्री हम्म। का है, 2 डिग्री का है, पहले नवांशा में है। तो फर्स्ट ईयर लग्न में, और 9 9 30 27 ईयर में 24 25 27। 26 27 28 29 टॉरस में आ जाएगा राहु। कहाँ से आ जाएगा टॉरस में? नवांशा में ट्वेंटी नहीं आएगा नाइन्थ ना। ईयर है ना। हाँ, तो टॉरस में क्यों आएगा? 12 साइन हो गए उसके। आप नवांशा को देखिए एक बार। 10 नंबर में आएगा सॉरी ना। सॉरी 10 नंबर में आएगा। सॉरी सॉरी, वो आएगा 11, 1 2 3 7 नंबर में आएगा नवांशा में नहीं। कैसे आएगा 7 नंबर में? देखिए ये राहु उल्टा चलेगा, हाँ, उल्टा चलेगा। चलते चलते 12 साल तक यहाँ पर 24 ईयर में यहाँ आएगा, हम्म। 25 26 27 28 29। तो ट्वेंटी हाँ, नाइन्थ ईयर में राहु जो है ट्राइन में चलेगा अपनी डिग्री के ऊपर में। अपनी डिग्री के ऊपर, और यहाँ पर तो आप जो कह रहे थे वो ठीक था कि वो यहाँ पे 10 नंबर में है। 10 नंबर में 0 डिग्री का आ जाएगा। हम्म। यस। ये प्रोग्रेशन में भी हम राहु और केतु को वैसे ही देखेंगे जैसे वो नॉर्मल मूव करते हैं। यस यस, जैसे मतलब रेट्रोग्रेड मूव मूव करते हैं वैसे ही देखना है। नहीं, रेट्रोग्रेड मूव करते मतलब रिवर्स में नहीं काउंट करते हैं ना, आगे जाएंगे ना। मतलब रिवर्स में तो सर ने किया काउंट। रिवर्स में किया ना, देखिए 10 से 9 आया, 9 से 8 आया, 8 मैं कह रहा हूँ राहु जो है वो रिवर्स में चलेगा। ओके ओके। जैसे ट्रांजिट में चलता है वैसे ही इसमें प्रोग्रेशन में भी चलेगा। अच्छा अच्छा, ओके।
पर जब आप ठीक है, तो ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ इसके बारे में। जब वो इसमें हमको ट्राइन में भी लेना है, तो हमने जो रूल पढ़ा अभी, कोई भी प्लेनेट असेंडेंट को मीट करेगा। अब कभी कभी हो जाता है कि वो बहुत ही ऐसा हो सकता है कि वो बहुत देर लेट मीट करेगा, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक रूल है जब असेंडेंट क्या कहते हैं, प्लेनेट प्लेनेट को मीट प्लेनेट को मूव करेगा। करेगा। अब एग्जांपल, ये असेंडेंट वीनस और मार्स को तो बहुत लेट मीट करेगा, करेक्ट? ये चलता 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 असेंडेंट। तो एक और साथ में ऐड किया गया, ये सर ने ऐड किया है कि उसके ट्राइन में भी हो डिग्रीकली, तो भी वही बात हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मून को देख लीजिए। मून असेंडेंट को कब मीट करेगा? तो ये तो बहुत लेट आएगा, ऑलमोस्ट 55th ईयर के बाद में, 64th ईयर के आसपास आएगा। उससे पहले भी मून जो है वो प्रोग्रेस करता 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 कैप्रिकॉर्न में आएगा, जब उतने डिग्री पे, मतलब थर्ड नमांसा, कैप्रिकॉर्न के थर्ड नमांसा में आएगा। वो भी इंपॉर्टेंट ईयर होगा, 38 तो ईयर। आपको ट्राइन में भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? ये सेकंड नवांसा है ना? 29 ईयर में आया वो। सेकंड नवा ट्वेंटी नाइन्थ ईयर में आया। किसकी कह रहे हैं आप? मून की? मून 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 मून। 9 ईयर, और यहाँ पर आपको 3 नवांसा चाहिए। और यहाँ पर मून कितने नवांसा में था? सेकंड नवांसा में, तो 9 - 2 + 1, तो 8 नवांसा। यस। सो जो मून मून जो है, ये देखिए, मून जो है 29th ईयर में जब इनका मैरिज हुआ, वो असेंडेंट से ट्राइन में आया। ये क्लियर है सबको कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मून जो है कैप्रिकॉर्न के थर्ड नवांशा में आएगा, ये तो सबको क्लियर है। दैट इज ट्राइन टू टॉरस थर्ड नवांशा, विच इज असेंडेंट। That's right, sir. तो इसी ईयर में इनका मैरिज भी हुआ है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हम जब कैलकुलेशन ये करके रखेंगे आप हर प्लेनेट का, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट जैसे मून, जुपिटर, सैटर्न का और केतु का, आपको बहुत सारे इवेंट दिख जाएंगे। वो सीट है क्या वैभव जी आपके इसमें? वो एक बार लगाइए ना। हाँ, वो लगा सकते हैं इसमें। वो जो एक सिंगल वाली सीट दिए थे ना, उसमें खाली ईयर डाल के अपने देख हम्म। सकते हैं। हाँ, एक सेकेंड ना। Do we see progression of ascendant also? यस। यस। Okay. बट एट ए टाइम यू विल सी ओनली वन प्लेनेट। आप एक या ही समय सारे प्लेनेट को घुमाओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, कोई भी एक प्लेनेट को लीजिए, उसको देखिए वो किससे मीट कर रहा है, तो उस दूसरे वाले को स्टेशनरी रखिए। ये नहीं कि आप सोचेंगे अरे मून यहाँ पहुंचा होगा तो सन आगे बढ़ गया होगा, ऐसा नहीं देखना है। मून, सन और जुपिटर को यहीं रखिए, या असेंडेंट को यहीं रखिए। आप जस्ट देखिए मून कब उसको मीट करेगा। अभी क्या टाइम हो गया है राकेश जी? ऑलमोस्ट 2:30 हो रहा है। पर ये सब कुछ डाइसेक्शन के लिए ठीक है, पहले सब चीज निकालने का कोई आइडिया होता है? यही तो है, ये पहले सब पहले चीज निकाल। निकालने का ही तो है। यही तो पहले ये पहले तो सर ये पता नहीं ना कि इज इट गोइंग टू बी समथिंग गुड और बैड, बट पीछे जब हम निकालते हैं तो डाइसेक्शन करते हैं तो पता चलता है। वी नहीं मैम। कैन लाइक इन नहीं निकाल केसेस में हम सकते ना। देख रहे आपको हैं। जैसे आपको मैरिज निकालनी है किसी की, तो आपको पता है कि वो 25 से 30 के बीच में होगी आज के हिसाब से देखा जाए तो। उस अब हिसाब आप से हाँ मैरिज के लिए। अब आपको 4 ईयर सर देखने अच्छा रहे, आप प्रोग्रेस में जी सर। देखिए, और एक साल का एक ही चार्ट बनेगा, करेक्ट? तो आपको आंसर जी तो सर। मिल जाएगा कौन से ईयर में होने वाली है। हाँ अंजलि तो जी सर और बोलिए। मैरिज के लिए तो जुपिटर जुपिटर और मार्स को ही निकालना है बस, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रोग्रेशन मैम। के लिए? नहीं यहाँ मार्स ऐसा नहीं। इसलिए लिया कि यहाँ पर वो 7th लॉर्ड नहीं, था। वो तो सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस
बट वैसे भी तो मार्च सर ने बोला हुआ है ना, सर हाँ कहते हाँ, थे कि मार्च के ऊपर वो फीमेल के लिए है ऐसा मानते हैं। फीमेल के लिए सर ने बोला हुआ है। जी हाँ, सर, फीमेल के लिए मानते हैं। ये तो चांस है, ये यहाँ पर है, अदरवाइज सर ने ही बताया हुआ है ये। हम्म। अंजलि जी बताइए आपका क्या है। सर जो ये मैरिज का आपने बताया ये D9 पे तो अप्लाई हो रहा है, एक बार मुझे D1 पे प्लीज अप्लाई करके बता दीजिए, थोड़ा वहाँ कंफ्यूजन लग रहा है 28th ईयर में कैसे आ रहा है। हमने 29th ईयर जुपिटर पकड़ा का था। पर जो आप बता रहे हो, एरीज पर बता रहे हैं ना सर? हाँ, तो एरीज में अब देखिए जुपिटर की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 0 डिग्री का जुपिटर है। सर तो 29th ईयर में अब मैं अगर पकड़ता हूँ मान लीजिए अभी, है ना, तो ये क्या हो गया, 9 नवांसा इन कैप्रिकॉन। यस अब आप कैलकुलेट करके बताइए मेरे को 29th ईयर में कहाँ आएगा। सर, 9 यहाँ पर होगा केप्रिकॉन में, 9 होगा इक्वेरियस में, और 9 होगा मीन राशि में। हम्म। उसके बाद यहाँ पर जब आता है तो 7 होना चाहिए ऐड। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि मंगल पे। क्यों 7 क्यों ऐड यस, होगा। अच्छा नहीं सर, हाँ जी सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हम्म, एक उसका फर्स्ट नवांश तक जाएंगे हम। ठीक है सर, हम्म, हम्म। गॉट इट, थैंक यू। एक मिनट में एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ। हाँ हाँ, इसको स्टॉप कर दीजिए। वैसे एक एक सेकंड आप मत स्टॉप कीजिए स्क्रीन शेयर, एक सेकंड, एक और बात मैं कह रहा था कि ये हमने देख लिया कि अभी कभी कभी आपको लगेगा आंसर की 28th ईयर की लग रहा है, पर 29th ईयर में आंसर आया। अब उसके पीछे भी लॉजिक है, तो अब उसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि उसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है। अब आप ये देखिए कि एक साल में, हमने कहा कि एक साल में एक प्रोग्रेस करेगा, एक नवांशा। अब पूरे साल भर तो वो फिक्स तो रहता नहीं कोई भी प्लेनेट, तो हर मंथ वाइज भी मूव करेगा, करेक्ट। सेकेंड चीज जो है, यहां पर आप नोट कीजिए मार्स की डिग्री है 21 एक्वेरियस, करेक्ट। तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ये लेट पहुंचेगा। हमको ये देखना है कि ये उस राशि, पर्टिकुलर राशि ऑफ इंटरेस्ट में कब पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 20 डिग्री होता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्वेरियस में है मान लीजिए, और ये एक्वेरियस में पर्टिकुलरली ये नवांशा में, एरीज नवांशा में है। अब ये नवांशा में ये पूरा एक साल रहेगा क्या। पहला रूल तो यही है कि एक साल मान लीजिए, उसमें कोई नहीं है। उसके आगे हम और रिसर्च भी चावला सर ने और रिसर्च करी, और उन्होंने ये बोला कि ये ये थोड़ा सा जल्दी मूव कर जाएगा, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर फॉर फुल 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री 42 मिनट्स ऑलरेडी लैप्स हो चुका है, करेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट 1/3, 3 महीने में जल्दी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ पूरा एक साल 9 महीने ही रहेगा उधर। समझ रहे हैं, तो रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं इसके आगे पहुंचने से। वो भी देखना कर, अभी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे उसको, अभी तो आप मान के चलिए कि एक साल एक ईयर, सर एक इस साल चीज एक को अगर नवांश। जुपिटर जुपिटर में लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो एक महीना, 12 12 साल होते हैं, और हर एक में एक एक महीना गया, वो मंथ वाइज जो आप बोल रहे हो, जुपिटर एकदम क्लियर हो जाता है, बाकी प्लैनेट्स थोड़े मुश्किल हैं। जुपिटर 12 12 साल का, तो 12 महीने, एक में रहा जनवरी ऐसे चलेगा ना, मंथ वाइज हो जाएगा। हम्म। अगर जैसे अभी आप उसको ब्रीफ में कर रहे थे, आगे छोटा करके बोले, हाँ हाँ तो हाँ। जुपिटर का ट्रांजिट जो है मंथ वाइज अगर हम लेते हैं, तो जनवरी फरवरी के 12 महीने 12 साल, तो एक एक महीना हम्म। एक एक में रहेगा। हम्म। और जैसे सैटर्न का 2.5 2.5 साल एक में चलता है, 30 इयर्स होने से। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं उसमें नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, सभी का प्रोग्रेशन नहीं सेम है, प्रोग्रेशन मून में। नहीं नहीं सर, मंथ वाइज जो आप निकाल करते हैं, तब सर भी करते तब थे भी मंथ वाइज। तब भी वही तब होगा। भी तब अच्छा, भी वही है, ओके। तब भी वही है, जितना इक्वल डिवीजन है, कोई आपको वो सोचना ही नहीं है कि कौन स्लो है। मून का भी देखेंगे तो मून भी एक साल एक ईयर, ओके। एक साल एक नवांशा मतलब।
हाँ जी, बस सर ये होगा जैसे मार्च की डिग्रीज थोड़ी सी बची हुई हैं, तो जैसे इस एट इस सेवंथ नवांशा में चल रहा है, सेवंथ एट नाइन्थ, तो तीन नवांशा बच गए, तो वो बस तीन नवांशा के हिसाब से हम उसको ड्यूरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं जो एक सेकंड, बच्चे। मैं एक्सेल शीट ओपन कर रहा हूँ, तो मैं अभी सुन नहीं रहा। सॉरी। मैं राकेश जी, आप आंसर कीजिए, क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं मैडम? मैं ये कह रही हूँ जैसे मार्स की 21 डिग्री है, तो हम्म। अभी हमारे पास तीन नवांशा ही बचे हैं इसके, तो जी। तीन तो इस ये है कि पूरा साल ना रह के यहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू जो साल के हिसाब से हम उसको डिवाइड करके उस उतनी ड्यूरेशन के लिए मान सकते हैं अभी कि हाँ अभी वो है। अभी 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 आप उसमें मत जाइए। है उसका ओके सर। कैलकुलेशन है, वो मंथली प्रोग्रेशन भी है, फिर डे वाइज प्रोग्रेशन भी है। हाँ जी, मैंने हाँ जैसे अभी बोला कि साल के लिए भी मान के चलते हैं, पर हाँ डिग्रीज पे डिपेंड करता है कि कितना रहेगा। जी जी। इसको स्टॉप कर रहा हूँ वैभव जी मैं। हाँ, अब मैं शेयर करता हूँ कि क्या हो रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट इसमें था। एक सेकंड, एक्सेल शीट दिख रही है आपको? नहीं, अभी नहीं दिख रही है। पर अभी नहीं आई। हाँ, अभी आ गई। आगे से। अब आ गए। तो अभी हमारा इंटरेस्ट है, पहले से मैरिज का देखना चाह रहे थे, करेक्ट? तो कौन सा ईयर देखना है हमको? मई टू में कोई थाउजेंड डेट ले लेता हूँ मैं, ट्वेंटी फर्स्ट में। नाइन्थ में हुआ ना? सब तो 3rd मई को, 3rd मई। कौन सा ईयर बताया, 2000? 13। 13। ओके, चार्ट ठीक लगाना है, पड़ेगा ना इनका। ये आ जाएगा इधर। मैंने लगा दिया है। ये अच्छा। राकेश, ये लग रहा है सीएसपी में, मैंने लगा चुका हूँ। अच्छा। तो इनका टॉरस, यस, यही इनका चार्ट है, बर्थ चार्ट, करेक्ट। हम्म। और प्रोग्रेस में जो है, जो हम कह रहे हैं, ओके, और प्रोग्रेस में जो है, ये चार्ट आया। जुपिटर मून का दिख रहा है क्या? एक सेकेंड, जुपिटर कहाँ है? जुपिटर जुपिटर इसमें 3 नंबर में दिखा रहा है कैसे? कहाँ बताया? एक सेकेंड। D9 में। अच्छा, ये अपने डेट से किया ना? एक सेकेंड, अच्छा अच्छा। मतलब अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली 29th ईयर लिखेंगे, हाँ, वैसे ही तो करिए अलग भैया, एक नहीं बार। तो कंफ्यूजन हो जाएगा सबको। हाँ, वही करते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर 29th ईयर, करेक्ट। वहां से डेट डिलीट कर दीजिए। हाँ। नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ लिख दिया हम्म, तो हम्म। यहाँ से पता लग जाएगा कि हम और क्या यहाँ बात 2 नंबर में आ गया, देखिए। कर। आ गया, देखिए। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ना पहले, कि वो डिफरेंटली मूव करते हैं, अगर हम और ज्यादा माइनरी जाए तो। ठीक है। अब इसको चलाइए, जुपिटर को देखिए, मार्स के ऊपर में गया D9 वाला। हाँ, अब हम यहाँ पर एनोटेशन यूज कर लेते हैं। कहाँ चले जाता है ये? थोड़ा सा जूम होगा क्या वैभव जी? हाँ, मैं करता हूँ, मैं बड़ी स्क्रीन पे हूँ तो। अरे यार, ये तो बोला विजिबल है। थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, हाँ। हाँ जी सर।
अच्छा इस साइड में मैं वो ढूंढ रहा हूँ, मेरा एनोटेशन का कहाँ चले गया। हाँ, तो राकेश जी कह रहे थे कि आप जुपिटर को देखिए, यहाँ पर जुपिटर है, प्रोग्रेस जुपिटर। अच्छा इसमें ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये लाइन क्रॉस कर लेते हैं। इसमें क्या है, D1 D9 ऐसा लगता है कितनी बार रीडिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये D1 है और ये D9 है आपका नेटल का, और ये प्रोग्रेस का है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये जो जुपिटर है वो एक एरी साइन में आया। वो एरी साइन क्या है, अपने मार्स के ऊपर आ गया, ये कह रहे थे। और जो है क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन में जुपिटर जो है 2 नंबर में आया। यहाँ 2 नंबर में आया, करेक्ट। हम्म। वो लग्न में आया, वो ठीक है। ये जुपिटर मार्स वाला राकेश जी ने पहले ही बोल दिया था ना, वो वहां पे था, फिर वही कुछ बता डेट रहे का हाँ। कंफ्यूजन हो गया था। राकेश जी क्या कंफ्यूजन हुआ था, अपन ने अपने कहा था 28th ईयर में ये तो यही रहेगा, क्योंकि ये तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे था, हम्म। इसको जुपिटर को प्रोग्रेस, अगर 28 ये 29th ईयर का है, तो जुपिटर जो है 28th ईयर में भृगु बिंदु के ऊपर भी है। वो यहाँ आएगा। तो इन्होंने कहा कि 28 ईयर में उनकी एंगेजमेंट हो गई थी, ट्वेंटी एंगेजमेंट नाइन हो गई होगी। अच्छा डे डे, अच्छा डे केतु वाइज चार तो नहीं है। नंबर हाँ, मैं ये नहीं, मैं एक और चीज ढूंढ रहा था कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसका कारण क्या था। हम्म। तो इसमें आप देखिए जो केतु है, तो 31 दिसंबर को हुआ। हाँ ये पूरे साल यही रहेगा चार्ट, वो सैटर्न केतु के ऊपर आया है। हम्म। ये राकेश जी, हाँ ये बोलिए। हुआ एक इम्पोर्टेंट चीज, तो ये तो हुआ ही कि जुपिटर यहाँ है, जुपिटर जो है प्रोग्रेशन में लग्न के ऊपर भी आया ही है। हाँ वो तो देखे थे अपने लग्न पे, इस बात नहीं। हम्म। So if any planet passes by Bhrigu Bindu also, that will also give a यस, positive. So Venus, I think, is transiting over, I mean, progressing over Bhrigu Bindu, natal Bhrigu Bindu. यस यस। वीनस इज हाँ D9 वाला, इन D9 वाला The टॉरस, बोलिए। progressed D9 one, in the fourth चार sign. नंबर बट नॉट डिग्रिकली। बेसिकली। डिग्रिकली नहीं प्रोग्रेस कर रहा है। डिग्री कली का इन द सेंस कि यहाँ पर भृगु बिंदु अ, ये जैसे इसमें है, और यहाँ पर जो है सेजिटेरियस में है, तो भृगु बिंदु की भी एक डिग्री है, करेक्ट, मतलब 6 नवांशा है। उस तरीके से नहीं हो रहा। Does it so happen that some planets give results early and some हाँ इसमें planets क्या हो रहा है, give little late result? नींद भी आनी चाहिए, अभी यस घूमने भी जाना, यस, इट सो नींद भी हैपन। आनी चाहिए।
But that we will look into when we are checking the Navamsa transit. हाँ, ये मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे ये सर ने देखिए, ये सर ने काम किया है पूरा इसके ऊपर, और ये उन्होंने बनाया है। जैसे ही आप ईयर डालते हैं, एट ए ग्लांस आपको पहले तो वो जो इंपॉर्टेंट ईयर हम बात कर रहे हैं कि कब प्लेनेट असेंडेंट को मूव करेंगे, तो ये उनके ईयर्स आ गए। अब ये आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था ट्राइन को भी देखना है, ये हम सब मिस कर रहे थे, वो मैंने इसलिए इसको देखा। असेंडेंट नवांसा टू राशि नवांसा, मतलब ये मून मून वाला होगा। एक सेकंड देखते हैं, सैटर्न और केतु किसके ट्राइन में जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर असेंडेंट जो है, मून मून और एसेंडेंट का देखना है हमको। एसेंडेंट नवांसा टू राशि नवांसा मतलब मून के नवांसा। मून के नवांसा, करेक्ट। तो मून का नवांसा क्या है यहाँ पर, 8 नंबर। 8 नंबर। और सैटर्न का जा रहा है, सैटर्न अपना यहाँ पर 8 के ट्राइन में होगा। कहाँ गया सैटर्न? है ना, 8 नंबर में जा रहा है D9 का मून, देखिए सैटर्न। हाँ, ये नहीं, पूरा पूरा ट्राइन से जा रहा है, देखिए ये यही कहना चाहता, देखिए एसेंडेंट नवांसा टू इस राशि इसमें नवांसा। लगते हैं, इसमें लिख देते हैं सैटर्न का है, देखिए सैटर्न का है एक्वेरियस साइन में। यहाँ से देख लिया मैंने, एक्वेरियस साइन में तो ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर देखेंगे आप कि सैटर्न कहाँ है, 8 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब सैटर्न इज डिग्रिकली ट्राइन टू मून। सी हियर, ये कारण से उनका वो एक्सीडेंट वाला इवेंट हुआ, जो आप कह रहे हैं सीरियस एक्सीडेंट हुआ, इज वेरी क्लियर हियर। जो प्रोग्रेस सैटर्न है वो यहाँ आया। इवन जो केतु के लिए लिखा है, पर वो केतु में शायद फॉरवर्ड मोशन ले लिया है सर ने, अभी देखना पड़ेगा। हाँ, केतु तो नहीं आ रहा, देखना है, 1 मिनट। केतु 4 नंबर में है, अब फॉरवर्ड लेंगे तो भी आएगा, तो भी आएगा वो। और 12 नंबर में है। तो 12 तो उससे टाइम में हो गया, ठीक है। 8 नंबर में हो गया ना नवांसा में। आप नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप, 8 नंबर में नावाशा में क्या हो गया? अगर हम फॉरवर्ड लेते हैं ना केतु को, तो वो ट्वेंटी तब तो नाइन सैटर्न और केतु साथ में ही चल रहे हो, तो सेम जगह आ हाँ, वो जाएंगे। तो सेम जगह ही आएंगे ना वो तो। हाँ, और अगर नहीं लेंगे तो केतु जो है वो आपका 8th हाउस में उसका एस्पेक्ट रहेगा यहाँ पे। नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। 27 28 29 ये रहा 30। केतु 4 नंबर में आएगा। हाँ, चार कभी नंबर भी में है। आएगा, कभी भी आएगा। ये केतु जो है, ये जो मून है ना, उसके ट्राइन में चल रहा है, मतलब ये कहने का मतलब है, ये मून से। 1 मिनट में यहाँ पर चेक ही कर लेता हूँ ना, फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं, रेट्रोगेट ही है, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं इसको। यहाँ डायरेक्ट किया मैंने, 1 व्यू में गया, तो अब केतु और सैटर्न साथ में आ गए, देखिए। अगर मैंने उसको डायरेक्ट कर दिया, तो सैटर्न और केतु, इसको रेट्रोगेट। और दे रहे हैं मार्स भृगु बिंदु पे प्रोग्रेस कर रहा है। ये देखिए आप, इसमें क्या लिखा है यहाँ पर सर ने, ऑटोमेटिकली आता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ पर, देखिए। मार्स, देखिए सबसे पहले सैटर्न का देखिए। इंजरी एज फोन थ्रो ए weapon और लॉन्ग सिकनेस, सडन लॉस ऑफ वेल्थ, डेथ ऑफ नियर रिलेशन, फियर। ये सैटर्न के कारण आया उनका, ठीक है। और मून के कारण क्या आया, द नेटिव विल बी ब्लेस्ड विद प्रोगेनी, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड लाइक विदाउट
विदाउट डाउट दिस ईयर। जैसे हमने कहा था ना आपको, मैंने अभी कैलकुलेशन से बताया था कि मून ट्राइन से आएगा असेंडेंट के। हेलो, आप सब फॉलो कर रहे हैं ये बात? जो मैंने आपको उस टाइम कैलकुलेशन करके भी बताया था कि मून ट्राइन में होगा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर जो है मून जो है असेंडेंट से ट्राइन में ये निकल के आया ना, मैं बताता हूँ क्या किया था हमने। अब इनके रिजल्ट क्या होंगे वो भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आप देखिए ध्यान से। मैंने क्या कहा था कि मून 29th ईयर में एसेंडेंट के ट्राइन में आएगा, मतलब 10 नंबर में आना चाहिए और पाइसिस में आना चाहिए। देखते हैं मून कहाँ है यहाँ पे। मून देखिए यहाँ पर 10 नंबर में आया और पाइसिस में आया आया। तो वो हमने कैलकुलेशन, आप ये तभी देख पाएंगे जब आप डिग्रिकली सोच पाएंगे इसको। हमने जस्ट डिग्रिकली कैलकुलेट करके देख लिया था कि 29th ईयर में मून जो है कैप्रिकॉन के थर्ड नवांशा में आ जाएगा, ये हमने मेंटली कैलकुलेट कर लिया था, और वो यहाँ यहाँ दिख रहा है। आप चार्ट भी बना लेंगे तो आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर आप जब भी डिग्रिकली कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, आपको आराम से आप इसको यूज कर पाएंगे। नहीं तो ये एक्सेल शीट की बहुत कम जरूरत पड़ेगी आपको देखने की। ये हमने जस्ट मेंटली कैलकुलेट करके देख लिया था कि मून कब एसेंडेंट से ट्राइन में आएगा, और मैंने कहा था कि विदाउट डाउट होगा, वही चीज लिखा हुआ है। तो इनके जो दो इवेंट हुए उस ईयर में, वो दोनों इवेंट क्लियरली दिख रहे हैं। पहला चीज हमने देखा, मून जो एसेंडेंट के ट्राइन में आया तो कोई पॉजिटिव होगा, हुआ। बट ये साथ में जो सैटर्न मून के ऊपर से निकला वो उनके लिए नेगेटिव था, तो वो नेगेटिव इवेंट हो गया। सैटर्न मून के ट्राइन में आया। ट्राइन में आया, ट्राइन इज इक्वल एज इक्वल टू, हाँ जी, डिग्रिकली ट्राइन में आया तो इज इक्वल डिग्रिकली। टू इट इज मूविंग ओवर। तो इसके इस ईयर में ये जो 5 मेथड है हमारे, आगे हम पढ़ने वाले थे, इसमें लिख दिए हैं। तो अभी हमने दो ही मेथड पढ़े थे, असेंडेंट टू। तो ये वाला असेंडेंट वाला जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कौन सा प्लेनेट असेंडेंट को मीट करेगा, तो हमने कहा मून असेंडेंट को मीट कर रहा है ट्राइन, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। साथ में ये भी लिखा है विदाउट डाउट, ये यूज किया है इंफॉर्मेशन वहां पे, ठीक है। और एक्सीडेंट से रिलेटेड भी क्लियर दिख रहा है सैटर्न के कारण, और मार्स जो है वो भृगु बिंदु से ट्राइन में। तो ये देख लीजिए, मार्स को देख लीजिए, भृगु बिंदु कहाँ है, 4 नंबर में। तो मार्स या तो 8 या 12 में होना चाहिए। देखिए मार्स कहाँ है, D9 में देखिए, मार्स कहाँ गया यहाँ पे। 5 नंबर में है इधर। डेट डाला इससे हुआ है क्या? ट्राइन में तो है, टाइम में हो गया ना। इससे ट्राइन में है, हम्म, बट टॉरस में कैसे आया? डेट डाला हुआ क्या है? नहीं नहीं, ईयर ही डाला हुआ है। अ, मुझे लग रहा है वो डेट से कैलकुलेशन तो नहीं हो रहा है, फिर भी। नहीं, डेट और उसमें कभी कभी एक नवंशा का फर्क आ जाता है। नहीं, मैंने डेट नहीं, ये 29th ईयर है ना, क्योंकि ये यहाँ लिखा। हाँ, ये आ जाता है कभी कभी यहाँ पर। कितनी डेट को हुआ उनका एक्सीडेंट? दिसंबर में, दिसंबर। 31 दिसंबर सर, न्यू ईयर ईव पर। हेलो, सॉरी मेरा म्यूट हो गया था। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या डेट लिख के आ रही है, ये हमारी एक फर्दर रिसर्च थी सर के साथ में। आप यहाँ देखिए क्या डेट लिखी हुई आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yeah, you are यस audible. सर। यस नीना जी, आप यहाँ देखिए डेट क्या लिख के आई है, अपने आप ये लिख के आई है। ये इसके पीछे रीजन है, वो बाद में बताते हैं। हमने ये कब वैसा होगा उसकी भी एक डेट निकाली, पर्टिकुलर ईयर में भी। डेट कहाँ आई है सर इसमें? डेट तो
26 दिसंबर 2013। सर जूम कर दीजिए वैभव जी। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? एक सेकंड, मैं जूम करता हूँ। अभी दिख रही है ये यहाँ पर? मैं मार्क करूँ क्या? ये डेट दिख हाँ रही है जी, सबको? दिख गई सर, 26 दिसंबर। ये जब सैटर्न मून के डिग्रिकली ट्राइन में हुआ। अब डिग्रिकली में उस ईयर में भी हमने बताया था, जैसे वो, क्योंकि वो डिग्री अलग होती है जब स्टार्ट करते हैं, करेक्ट? उस ईयर में भी असेंडेंट को कौन मून को कितने डिग्री पे मीट कर जाएगा, उस ईयर को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है कि कौन से मंथ में होगा वो। तो यहाँ पे ये बता रहा है एग्जैक्टली 26 दिसंबर 2013 को सैटर्न जो है मून के ऊपर से निकल रहा है। और ये डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आई है, अपन ने पहले से नहीं बनाया चार्ट। और ये सब प्रोग्रेशन के बेसिस पे, इसमें ट्रांजिट का ही यूज नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नीना जी? जी सर, जी सर, अपन ने एकदम। पूरा ईयर, ऐसा तो है नहीं पूरे ईयर में कब इवेंट होगा, तो हम उस पूरे ईयर में भी हम देख रहे हैं कि वो पर्टिकुलर डिग्री को, जैसे 3 डिग्री 20 मिनट्स है, उसको अपन ने 12 मंथ कह दिया। हो सकता है वो 1 डिग्री बाद ही मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे 3 महीने बाद हो जाएगा। अगर वो 2 डिग्री बाद है तो हम कहेंगे 6 महीने बाद होगा, ऐसा कुछ। तो ये उस हिसाब से कैलकुलेट करके इसकी डेट भी दी हुई है यहाँ पे, दोनों की। और ये भी देख लेते हैं, ये शायद आया, देखते हैं। अ, क्या डेट है ये? 14/1/2013। ये ये वहां से डेट हटाइए तब आएगा मेरे ख्याल से। कहाँ से डेट हटाना है? यहाँ से हटाइए। ऊपर में यहाँ पे है क्या डेट पे? है, डेट है। हाँ वो हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। डिलीट कर देते हैं। नहीं, वो आगे का बता रहा है। नहीं, उसमें कुछ गलती है, वो देखता हूँ वो ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है मैंने लेटेस्ट शीट ओपन नहीं करी है। बट ये सबको क्लियर है कि 2 इवेंट हमने इस ईयर में देखे और दोनों प्रोग्रेशन से ही देखे हैं। और इसमें यस ये सर। वेरी वेरी क्लोज टू द डेट है। नहीं ये तो इस टाइम में आएगा ना, बिल्कुल छब्बीस क्लियर है बारह को सर। तो आएगा। इवेंट इसके बाद नहीं हुई है। नहीं 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 नहीं, 31 दिसंबर को हुई है वो, पूरे पूरे साल में। दिसंबर 2013 को ही हुई ना ये इवेंट। यस सर, सेम ईयर ऑफ मैरिज। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ पर कि वो जो अब ये, सर ने सिखाया था ना, वो तो डे वाइज अगर निकालो तो उस डेट का देख सकते थे। प्रोग्रेशन हाँ, उस डेट का निकाल के नहीं देख लो वो तो प्रोग्रेशन उसमें। अलग है। नहीं नहीं, वो चीज अलग है। नीना जी, वो हम डे ओके। वाइज भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो चीज अलग आती है। नहीं, मेरे इसमें ख्याल क्या से क्या है? दिस 26 इज वेरी क्लोज टू 29, 31st। तो मेरे को लगा कि शायद उसमें एग्जैक्ट डेट आ यस। जाए। नहीं, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो डिग्री के लिए हम कैलकुलेट, मतलब ये इवेंट जनवरी से लेकर दिसंबर में कभी भी हो सकता था। अगर हम ओनली 29th ईयर पकड़ते तो हम कहते हैं जनवरी में भी हो सकता था। बट हमारी कैलकुलेशन जो है वो डिग्री वाइज कैलकुलेशन करके उससे ये डेट निकली हुई है कि एग्जैक्टली सैटर्न कब ओके। मून को मीट करेगा। ओके सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये डेट का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये बता रहा हूँ। सॉरी जी राकेश सर। जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, हो गया आपने कह दिया। अच्छा। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा कि ये फरवरी में क्यों नहीं हुआ, मार्च में क्यों नहीं हुआ, ऐसा। तो ये समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें अब मेथड, ये 5 मेथड है इसके, जो है कि प्लेनेट कब असेंडेंट को मीट करेंगे और असेंडेंट कब प्लेनेट को मीट करेगा, ये हमने देख लिया। फिर उसके बाद है नवांशा नंबर, न्यूमेरिकल नवांश। न्यूमेरिकल नवांशा। सो ये अभी देख लें दो क्विकली, और उसके बाद ये तो इजी था, असेंडेंट टू मून और प्लेनेट टू मून तो हमने देख ही लिया।
तो अब ये न्यूमेरिकल नमांशा क्या है ये देख लेते हैं बहुत क्विकली। ठीक है, तो जितने भी आपके प्लैनेट्स है, होपफुली ये है, ये दिखेगा नहीं शायद आपको। उसी में करिए ना, वो डिग्री दिया हुआ है उसमें, शीट में अच्छा तो तो दिया हुआ है। इसी में करते हैं, यहाँ इसी में करते हैं चलो। एसेंडेंट 9 हर डिग्री एक 25 प्लेनेट का, मिनट का है। हर प्लेनेट का एक डिग्री दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के लिए मून का ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मून कौन से न्यूमेरिकल नमांशा में है। ठीक है, तो 5 डिग्री 26 मिनट लिब्रा। तो यहाँ पे इजी सोचने के लिए, अगर किसी को इजी है तो यहाँ पे लिब्रा में 5 डिग्री का है। आपको क्या करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ असेंडेंट, आपको देखना है कि कोई भी प्लेनेट लिब्रा में 5 डिग्री का है तो वो कौन से न्यूमेरिकल नमांशा में होगा। मतलब कैलकुलेशन चालू यहाँ से होगी, 0 डिग्री अब एरीज से, सुनिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 राशि तो 9 into 6 कर दो, 54 आ गया। प्लस कौन सा आया, 5 डिग्री, 5 डिग्री 56 मतलब आया। सेकंड, तो 58 नमांस, करेक्ट। न्यूमेरिकल नमांस इज 58। 56। दिस इज क्लियर। 56 56, सॉरी, 54 + 2 56। ये सबको क्लियर है, मून का न्यूमेरिकल नमांसा 56 है। एरीज से काउंट करते हैं और उसकी जो भी डिग्री वहां तक पहुंच जाते हैं, तो वो ईयर भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब मैं सीट 0 पे जाता हूँ और यहाँ देखते हैं कि मून का क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, तो वो पर्टिकुलर ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 56 ईयर भी इंपॉर्टेंट हो गया इनके लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक प्लेनेट का एक न्यूमेरिकल नमांसा होगा। ये तो सबसे इजी कैलकुलेशन है, इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए, फटाफट से क्लियर हो जाएगा अगर है किसी को भी। हर प्लेनेट का एक न्यूमेरिकल नमांसा होगा, ये सबको क्लियर है? मतलब ये यहाँ से भी देख सकते हैं एक्चुअली। सर ये सर ने चार्ट दिया हुआ, उसमें दिया हुआ है हमारे पास, एक चार्ट शेयर किया था सर ने ना, इसकी कॉपी की हाँ हुई है हमने। ठीक है, तो ये अगर नहीं भी हो, ये ये इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए। ये थर्ड रूल क्या है, हमारे 5 इंपॉर्टेंट रूल है, 5 इवेंटफुल ईयर्स है, उसमें से थर्ड रूल ये कहता है कि वो पर्टिकुलर ईयर में भी रिजल्ट मिलेगा। ये क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लें फटाफट से और इसको क्लियर करें। आप बताते हैं, जैसे सेटन का देखते हैं, सेटन को देखते हैं। यहाँ पर सेटन अपना है 2 डिग्री का, कहाँ पे है, यहाँ पर 2 डिग्री का है। ठीक है, तो कोई भी कैलकुलेट करके बताएं कि यहाँ कितने, ये इसका न्यूमेरिकल निमांसा क्या है सेटन का। कौन ट्राई करेंगे? आशा जी, आप ट्राई करेंगे? पर इसे हमें डिग्री देखने की जरूरत नहीं है। सैटर्न सेटन 2 डिग्री का है तो इसका न्यूमेरिकल नमांशा क्या हुआ? हाँ 64th नवमांश आया। ठीक है, ये वो आपने एरीज से काउंट करना चालू किया, हाँ तो यहाँ तक 63 हो गया। 64 नो, आता है। अच्छा, 9 9 into 7 टू 63 डिग्री आ गया, +1। हाँ 64th नवमांश। सबको क्लियर है? इसमें इसमें असेंडेंट का कोई रोल नहीं है, जस्ट नॉर्मल साइन को देखना है कि अरे एरीज के 0 डिग्री से आपको यहाँ तक पहुंचना है, सिंपल है। तो न्यूमेरिकल नवांसा तो ये हो गया। तो आपके पास प्लेनेट टू असेंडेंट, असेंडेंट टू प्लेनेट, और ये न्यूमेरिकल नवांसा हो गया। देन असेंडेंट नवांसा टू, ये क्या था राकेश जी, सॉरी मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ इसमें। क्या चीज? एसेंडेंट नवांसा ये जो टू, था हाँ, नवांसा ऑफ न्यूमेरिकल मून, मून, मून। एसेंडेंट नवांसा टू नवांसा ऑक्यूपाइड बाय मून। करेक्ट। सो ये जैसे मार्स और मरकरी का फर्स्ट आया, हम्म। ये चेक कर लेते हैं एक फटाफट से, मार्स और मरकरी का। मार्च की डिग्री कितनी है? 2142, 7th नवांश।
ये मेरे ख्याल से 90 सॉरी 108 क्रॉस करते नहीं, 108 तो क्रॉस नहीं करेगा। नहीं। एक बार खोलिए चार्ट को। मैं क्लियर कर देता हूँ। एसेंडेंट नवांशा इज 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। हाँ, हो गया ना। क्या क्या कैलकुलेशन किया आपने, सॉरी? देखिए, एसेंडेंट का नवांशा क्या है, 12 नंबर। हम्म। और यहाँ पे मार्स का नवांशा क्या है, 1 नंबर। हम्म। एसेंडेंट नवांशा टू नवांशा ऑफ दैट पर्टिकुलर। नहीं, फिर वो असेंडेंट टू प्लेनेट ही हो गया ना, वो तो है। नहीं 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 नहीं। एक साल में, एक मिनट, मैं इसको फिर से इधर इधर ले जाके नहीं, पढ़ता देखिए, हूँ ये फिर एसेंडेंट से। एसेंडेंट का नवांशा क्या है, वीनस ना। 12 नंबर। ये हम्म। 12 नंबर। और जुपिटर का कहाँ है? ओके, असेंडेंट, ओके, अभी क्लियर है। वो असेंडेंट लॉर्ड हाँ से होगा मेरे ख्याल। हाँ, एसेंडेंट लॉर्ड से होगा ना, वो उसका वो जो हम्म। नवांशा हम्म। ऑक्युपाई किया है। एसेंडेंट हम्म। का हम्म। नवांशा 2 नंबर है, उसका लॉर्ड भी 2 नंबर ऑक्युपाई किया है। उसका उसका नवांशा डिस्पोजिटर भी 2 नंबर ऑक्युपाई किया है। 2 नंबर। वीनस वीनस का जो डिस्पोजिटर है वो 2 नंबर ही ऑक्युपाई किया है ना। वीनस का जो जुपिटर है। नहीं, आप इधर वही इधर कंफ्यूजन हो रहा है, आप इसको मत देखिए। अच्छा 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 ये अच्छा, D1 सॉरी D9 सॉरी। ये है। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। सर जुपिटर का सैटर्न हुआ डिस्पोजिटर इसी में, D9 में। वीनस। मार्स और मरकरी कितना है? मार्स और Venus। एक सेकंड, यहाँ पर क्लियरली लिखा है। नहीं, जुपिटर जिस साइन में है। एसेंडेंट का वीनस कौन से नवांशा में है, 12 नंबर में। ये एक सेकंड है। राकेश जी, पुष्पा जी का मैसेज आया कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। एक बार आप देख लीजिए। ज्वाइन नहीं कर पा रही है? इसमें तो कुछ आ नहीं रहा है मेरे पास नोटिफिकेशन तो। और मुझे मैसेज आया उनका कि ट्राइड मैनी टाइम्स बट कुडंट ज्वाइन। वो गलत लिंक को तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि सब तो ज्वाइन कर पा रहे हैं ना। मैं उनको भेज देती हूँ आप चलिए, अभी लिंक तो में। बस हम हाँ, लोग एंड करेंगे अब वैसे ऑलरेडी। भी अब वाइन करेंगे वैसे भी। अरे वैभव जी, लॉर्ड ऑफ राइजिंग नवांसा टू द फ्रॉम द लग्न नवांसा एक्चुअल में।
हाँ, किसी भी प्लेनेट का लॉर्ड ऑफ राइजिंग नमांसा। तो जुपिटर 10 नंबर में ही है ना दोनों जगह। हाँ हाँ, जुपिटर दोनों जगह 10 नंबर में ही है, और मार्स का देख तो लेते वो हैं। एक हो गया। और एक को किसका था, मून का देखे थे क्या 1 नंबर। मर्क्यूरी का तो मर्क्यूरी का भी वही आ गया। मर्क्यूरी का जो, जुपिटर है, वो भी जुपिटर है ना, वो भी एक ही जगह है। हम्म, इस तरीके से। और मार्स कितने था? मार्स आपका था, मार्स है 11, यहाँ पे है मार्स 1 नंबर में। एक सेकंड में फिर से चेक कर एक लूं, बार चेक कर किसका लीजिए। हम देख रहे थे। मार्स का एक बताया। हाँ, मार्स का और मरकरी का 1 नंबर। एसेंडेंट ये ऑफ इजी मार्स का। रहेगा, राहु हाँ, का 55th बताया है। ये 71 दिया राहु है का एसेंडेंट। 55। एसेंडेंट का 71 दिया है। एक बार देखिए तो। असेंडेंट का 71 दिया ना, तो हाँ हाँ देखते हैं हाँ हाँ। असेंडेंट का 71 का। ठीक है, ये यहाँ से 10 नंबर काउंट करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सब कुछ सेम है, सिंपल है कि आपको सभी को जुपिटर के रेस्पेक्ट, यहाँ पर जो है राइजिंग नमांसा लॉर्ड जो है जुपिटर हो गया। हम्म। नाउ एवरी प्लेनेट विथ रेस्पेक्ट टू जुपिटर देखना है, करेक्ट। नहीं, एवरी प्लेनेट विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर तो नहीं देखेंगे। जैसे 64 करके राहु जो है, ये वाला मुझे भी कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा। मैं एक बार एग्जांपल चार्ट ले लेते हैं, नहीं तो मेरे पास एग्जांपल चार्ट है। एक स्मॉल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्या? मरकरी, ओके, यस यस यस। दो मेथड हो चुके हैं, दो को थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। अभी तीन हो चुके हैं एक्चुअली, तो चौथा पांचवा फिर अगली क्लास में कर ले। ये उस बच्चा कुछ नहीं है इसलिए बोल रहे थे, ये जस्ट नहीं, सिंपल अगली है, क्लास में फिर जस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे ना, वरना क्योंकि ये हमने, ये जो अभी पढ़ाया वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। हाँ ठीक है, पर ठीक है, टाइम हो गया, वैसे भी हमको क्लोज करना है, तो एक क्लास हम और नहीं, लेंगे वैसे तो। तो सर आप रिकॉर्डिंग देंगे ही तो प्रैक्टिस तो हम कर सकते हैं। हाँ हाँ। मैडम, करता कौन है प्रैक्टिस। करते ना सर, चार्ट भेजा तो था आपको पिछली सर बार भी। टाइम का आगे कर पीछे रहे होगा हैं, तो कर लेते हैं। क्योंकि अभी ना वो समझ में भी नहीं आ रहा है फिर क्या चल रहा है। तीन तीन मेथड तो एटलीस्ट याद रखने दो। जस्ट अ रिक्वेस्ट सर, आपके ऊपर है और वैसे ये अब। ये बुक में लिखे हैं, अब आपको बुक समझ में आ जाएगी अगर आप बुक में हाँ, पढ़ेंगे अब वो तो। तीन समझ में आ गए, करेक्ट, इसी के लिए बोला मैंने कि जस्ट अ रिक्वेस्ट कि तीन जो समझ में आ गए उसको फिर अभी थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दो, फिर चौथा पांचवा अगले वाली क्लास में कर लेते हैं। चलो, आप लोग करके आओ, इस बार होमवर्क करके आना आप लोग। ठीक है, तो अब आप इतने तीन के आपको कितने ईयर हो गए, ये आपके पास होने चाहिए सबके पास। आप ये हम एक्सेल शीट नहीं दे रहे हैं आपको, हैंड से ही करना है। आपके पास प्लेनेट टू असेंडेंट, असेंडेंट टू असेंडेंट प्लेनेट, टू प्लैनेट एंड और नवांसा नवांशा नंबर। टू ठीक है, न्यूमेरिकल नवांशा है ना वो। न्यूमेरिकल नवांसा होता है ये हम्म। आपके हर प्लेनेट के आएंगे, साथ में भृगु बिंदु को भी चलाइए आप। तो आपके हाँ पास जी। 10 हो गए। 10 के लिए आपके पास क्या 11 ही हो गए एक तरह से तो। हाँ पर ठीक है, 10 इंटू 3 में 30 ईयर्स आपके पास आने चाहिए, इंपॉर्टेंट ईयर्स। और ये तभी हम्म। यूजफुल होंगे, इनको ऐसे देखने से नहीं होगा, जिस तरीके से हम एनालाइज कर रहे हैं उस तरीके से एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा। पहले जुपिटर का ही लगा के देखिए एटलीस्ट। ठीक है, तो आपको आप अपने चार्ट में ये लगा के देखना है आप अपने एटलीस्ट। अपने चार्ट के इम्पोर्टेंट इवेंट को लगा के पहले देख लीजिए, और उसका हम्म। प्रोग्रेशन देख लीजिए, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, और चीज़ें आपके पकड़ में आएगी सर। हम्म। ठीक है। लेकिन करना पड़ेगा, नहीं किए बिना तो बात बनेगी नहीं।
हमारी तरफ से भी अगर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमको, जैसा कि हमने लास्ट 3-4 क्लास में देख लिया, तो हमारी तरफ से नेक्स्ट क्लास लास्ट होगी, क्योंकि उसके बाद में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है आगे बढ़ाने का। तो हम सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास लास्ट होगी, और उसमें आप अपने डाउट भी लेके आइए, क्योंकि ये तो 15 मिनट में कवर कर लेंगे जो नेक्स्ट कवर करना है हमको। तो आप जो भी डाउट है उसमें लेके आइए, और मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट क्लास होगी। होपफुली आप लोग कुछ तो सीख पाए इसमें। बहुत हमारे कुछ लिए भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही कुछ। वैभव जी, थोड़ा नहीं बहुत कुछ। बस बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर मेरे जैसे के लिए थोड़े धीरे धीरे समझ आ रहा है, नहीं, बट आपके ठीक जैसे है। नहीं ऐसे ही सब बैठे हैं यहाँ पे। मतलब बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही है वो, हाँ इतना हाँ। इजी भी नहीं है। देख कर हम्म। इमीडिएटली कुछ जैसे क्लिक होता है वैसा नहीं है, थोड़ा नहीं नहीं कैलकुलेशंस है नहीं, तो टाइम बिल्कुल करेक्ट नहीं लगेगा। नहीं, करेक्ट। बैठ के कभी क्लिक नहीं होगा। आप कॉम्प्लिकेटेड तो जब जब तक प्रैक्टिस। हाँ। कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप 10 लगाइए तो आपको उससे ज्यादा इजी है ये। आप दशा को कितना जल्दी इंटरप्रेट कर पाते हैं बताइए मेरे को।